Okay, so come to the sheet one. Okay, so we'll see most asked question answer. Okay, so we'll see one by one. Okay, so first we are going to see the actually Excel means it is one of the vast data analysis toolkit that's developed by the Microsoft. Okay, so okay, we'll see one by one. So come to the first conditional formatting. So we have the seat location here. Okay, उसके सामने आपको seat location मिलेगा. So just click on that. उस पे आपको click करना है. Okay, click on the sheet location. Okay, actually it's a hyperlink. So now up. Okay, done. Okay, okay, okay. So yeah, this is our sheet. I think we'll get this sheet, right? In this particular sheet, yes, we have some serial number, we have some players, then we have some matches, catches, wicket, right? Okay, okay. Now see what is a conditional formatting. Okay, conditional formatting मतलब based on the some condition we can format the cell. हम सेल को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल का कलर या सेल को कुछ अलग फॉर्मेट दे सकते हैं. ओके, बेस्ड ऑन द सम कंडीशन. ओके, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे मिलेगी? यानी कि on the home page, yes, we have the conditional formatting option. Yeah, in the conditional formatting, we have the highlight cell rules, then we have the top bottom rules, then we have the data bars, color scales, also we have the icon set. Okay, okay. So just take an example. So yes, we have the some players here. Suppose we have some players and also we have the some matches here. So मुझे क्या करना है? We have to show the top three players जिनके सबसे ज्यादा मैचेस है. ओके, जिनके सबसे ज्यादा मैचेस क्या हुए, कंप्लीट हुए. ओके, सो वी हैव टू शो द टॉप थ्री प्लेयर्स. तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? सो यस, सी फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलम, मैचेस कॉलम, राइट? So go to the conditional formatting. So which option you have to select? Top bottom rows, because we have to show the top three players. Okay, so we have the option that is a top bottom rules. Okay, ठीक है. So top, then we have the top items here. Okay, so click on the top items. By default you have the 10 items. Okay, but मुझे कितने शो करने हैं? Just we have to show the three here. So just select the three. हाँ, you can select the color. आप color select कर सकते हो. by by using this color you can highlight your cells. Suppose I'm using the green color here, and then just press the OK. Okay, ठीक है. So it's a top three players. Okay, you can check it. 265, 235, 234 and the 245. Okay, okay, try this one. You have to show the top three players जिनके सबसे ज्यादा मैचेस हैं. तू सिलेक्ट नाही केलं, तू ड्रॅग केलं ते अंडो करतो ते. अंडो करा. So you have to show the top three players. Okay, first select the column. Okay, see how to do it. It's very simple. See, first select the column. Okay, then go to the conditional formatting. Then click on the top and bottom rule. So we have to show the top three items. So we have the by default we have the top 10, but you can change it. So instead of 10, write 3 here. Okay, यदि आपको 5 लिखना है तो 5 भी लिख सकते हैं. Okay, हाँ, yes, you can select the color and then just press the OK. Then press the OK. Check this. Okay, so this is the top three players. Okay, after that, suppose we have the salary column. तो मुझे क्या करना है? सीधे मुझे यहाँ पे इन द सैलरी कॉलम जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 24,000 है, उसे रेड रेड कलर से मुझे क्या करना है? हाईलाइट करना है. और जिनकी सैलरी लेस देन 15 है, 15,000, उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है. ओके, वी हैव टू अप्लाई द टू रूल्स एट द सेम टाइम. कर सकते हैं. Okay, see them. Okay, just see how to do it. Okay, first you have to select the salary column, right? Okay, ठीक है. So again you have to use the conditional formatting. Okay, from conditional formatting, yes, we have to select the highlight save rules. So first we are using the greater than. Okay, so select the greater than. So greater than 24,000. Okay, जिनकी सैलरी 24,000 से ग्रेटर है, ओके, तो उनका कलर क्या होगा? इट्स अ रेड. ओके, ठीक है, रेड, या इट्स अ रेड.
Okay, ठीक है. Now again we have to apply the second rule. Okay, so again select the same column. Okay, then again select the conditional formatting, then again select the highlight cell rules. Now we have the less than. Okay, so less than means it's a less than 50,000. इनकी salary less than 15,000 है. Okay, so yes, उनका color होगा so green now and praise the word. Okay, check it. Try this one. Okay, you have to apply the two rules at the same time. Highlight the salaries, okay, about 24,000 as well as less than 15,000. Okay, दोनों आपको हाईलाइट करनी है. ओके, दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए. Okay, you can download this file from group. Yes, group पे एक file है, interview questions answer. You have to download this file and you have to use this file. Okay, you can check the group. Okay, done. Okay, first select the column, then go to the conditional formattings, go to the highlight cell rules, again select the greater than, then apply the rule, again select the column, and then select the less than. Okay, दो बार आपको अप्लाई करना है. Okay, done. Okay. After that, okay. So yes, you can click on the back to the main sheet. Click on the back to the main sheet. Okay, so we'll get the again main sheet. Okay, so okay, so first we have seen the conditional formatting, right? Okay, after that, next thing that we are going to see the absolute reference and the relative cell reference. Now see what is this concept. So click here sheet 3. Okay, click on the sheet 3 now. Okay, 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 उसके सामने जो शीट होगी उस पर क्लिक करना है आपको. ओके, ओके, जो भी होगी. यहाँ पे जो ओके इट्स अ शीट 3. ओके, क्लिक क्लिक द. ओके, ठीक है. नाउ सी व्हाट इज द रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस. एक्चुअली हमने कंसेप्ट देखी है. ओके, ओके, सभी के पास फाइल है. ओके, चेक द फाइल. आपको पर्टिकुलर ग्रुप में मिल जाएगी. यदि आपका 11:30 का ग्रुप है उसके अंदर मिलेगी, या 6:30 का ग्रुप है उसके अंदर मिलेगी. ओके, फाइल नेम इज इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर. अभी भेजा आपने? हाँ, ग्रुप पे डाली मैंने, चेक करो. हाँ, हाँ, रेकॉर्ड भेटून जाईल पहिले. ठीक आहे. ते इन्स्टॉल करून घेतो. Okay. Now see that. So it's a relative reference and the absolute reference. See what is a relative and absolute reference. Okay, suppose we have the one column that's a marks column. In the marks we have the some marks. So मुझे क्या करना है इस मार्क के अंदर मुझे मुझे कुछ ग्रेड देने हैं. So हर एक मार्क्स के अंदर मुझे क्या ऐड करना है 10 ऐड. ओके, तो एक्चुअली देखा था हमने. ओके, इन द एक्सेल पार्ट सीधे तो हमें क्या करना पड़ेगा. विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज. मुझे हर एक मार्क्स के अंदर हर एक वैल्यू के अंदर 10 को ऐड करना है. ओके, सो यस, देखो कंडीशन क्या है. हमारे पास एक कॉलम है मार्क्स कॉलम. ओके, इन द मार्क्स वी हैव द सम मार्क्स. तो मुझे क्या करना है हर एक मार्क्स के अंदर इस 10 को ऐड करना है. हर एक वैल्यू के अंदर 10 को ऐड करना है. नहीं, जस्ट सिंपल सम फॉर्मूला. ओके, सिंपल सम है ना. अदरवाइज यू कैन गो इंडिविजुअली. दैट मींस इक्वल सेलेक्ट दिस वन, select this one, you can use the plus operator and select this one. Okay, it's very simple. Or either you can use the sum formula also. Okay, इंडिविजुअल भी जा सकते हैं या सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. नाउ सी दैट. अब व्हाट इज द कंसेप्ट. एक्चुअली हमने क्या किया था. सपोज मुझे क्या करना है इस पे 10 ऐड करना है. तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द 45. ओके, देन यू हैव टू सिलेक्ट द 10. ओके, बट इसके बाद सपोज मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा. फ्रीज करना पड़ेगा किस सेल को. हाँ, 10 को फ्रीज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज योर फिक्स सेल. Okay, and remember fixed cell is called as absolute reference. Okay, so we are using एक तो हम from keyboard you can press the F4.
ओके राइट, टू फिक्स द सेल। अदरवाइज जो आई फाइव है उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, डॉलर सिंबल भी डाल सकते हैं। सिंपल, या इट्स अ फ्रीज नाउ, डॉलर सिंबल। हाँ, कीबोर्ड से करना है तो F4 प्रेस करना पड़ेगा, राइट? Okay, and then press the enter. See there, I got the 55. Then you can drag the formula. Yes, I got the 77 48. That means हर एक वैल्यू के अंदर 10 ऐड हो चुका है। Okay, that is called as an absolute reference. Okay, if you are going to freeze the cell, then it's called as absolute reference. आप आपकी सेल फ्रीज नहीं है, आपकी सेल नॉर्मल है, you are selecting the cell, that means it's called as a relative reference. Okay, it's called as a relative reference there. Check it again. ओके, फ्रीज क्यों करना है? बिकॉज वो सेल फिक्स है। और जब हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो आपकी क्या होगी, आपका फॉर्मूला के साथ आपकी रेंज भी ड्रैग होगी। ओके, विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। ओके, चेक दिस। ओके, अगेन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड द रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब द इट्स अ फिक्स सेल। Okay, to make it absolute we are using the dollar symbol, and relative reference matlab it depends on the location, it's a reference. Okay, it's a reference, okay, it's a reference cell. Okay, मतलब वो चेंज हो सकती है। ओके, तो या इन दिस इन द पर्टिकुलर सेल वी हैव द 10। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एक्चुअली क्यों कर रहे हैं हम। सो मुझे एडिशन करनी है। ओके, आइदर आप यहाँ पे सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, आई एम यूजिंग डायरेक्टली, आई एम यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। ओके, फॉर्मूला लिखना है जिसका मतलब होगा वी हैव टू स्टार्ट विद इक्वल टू, राइट? ओके, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 45 प्लस 10। ओके, इन दोनों की एडिशन करनी है। ओके, ठीक है, देन प्रेस द एंटर, विल गेट 55। बट नॉर्मली होता है क्या कि हम फॉर्मूला को ड्रैग भी कर सकते हैं, बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ड्रैग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं या मैन्युअली भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका आपका फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। बट इट्स अ करेक्ट, नो देखो 67 तो यहाँ पे 67 ही मिल रहा है। ओके, फर्स्ट तो करेक्ट हुआ, इसके अंदर 10 तो ऐड हुआ, उसके बाद हमारा 10 ऐड नहीं हुआ है। ओके, बिकॉज यदि आप फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हो तो आपकी रेंज भी ड्रैग हो रही है। सी हाउ, सो दिस इज द रेंज फॉर दिस फॉर्मूला। ओके, ठीक है, नाउ चेक इट, इसके लिए रेंज देखो। ओके, इसके लिए रेंज देखो, इसका मतलब ये इस साइड से आपकी सेल क्या हो रही है, रेंज क्या हो रही है, ड्रैग हो रही है, तो वो भी साइड से रेंज ड्रैग हो रही है, तो विल गेट द रॉन्ग आंसर। ओके, सो टू सॉल्व दिस, यस वी हैव टू फ्रीज द सेल, उस सेल को फ्रीज करना पड़ेगा, दैट मींस अ फिक्स सेल। ओके, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेक इट एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसे क्या बनाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना पड़ेगा उस सेल को। तो ये था आपका फॉर्मूला। तो I5, okay, either you can select the I5 and from keyboard you can press the dollar, F4। Okay, from keyboard you can press the F4 to make it freeze। Okay, otherwise ठीक है, यदि यदि आप डॉलर नहीं F4 नहीं यूज कर रहे हो, सपोज दिस इज योर सेल, तो जो सेल के बीच में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द डॉलर I5। ओके, I5 के बीच में आपको एक डॉलर सिंबल डालना है। ओके, या इट्स अ फ्रीज नाउ। Okay, it's a freeze, it's an absolute reference now, then press the enter, and then you can drag the formula। for the drag करने तक आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, जो प्लस सिंबल आ रहा है, क्रॉस सिंबल, जस्ट डबल क्लिक द। ओके, या दिस इज व्हाट्स द रिलेटिव रेफरेंस एंड द एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब इट्स अ फिक्स वैल्यू, फिक्स रेफरेंस। ये आप यदि फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हो तो आपकी सेल क्या होगी, फिक्स होगी। ओके, रिलेटिव रेफरेंस मतलब it's a normal reference। Okay, it's a normal location, okay, of any cell। Okay, ठीक है, yeah, this is the relative and the absolute reference। and to make it absolute we are using the dollar symbol। okay, or from keyboard, yes, we are using the F4। okay, okay, यदि फाइल नहीं, okay, डाउनलोड द फाइल फ्रॉम ग्रुप, इट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर फाइल। ओके, उसे आपको डाउनलोड करना है एंड यूज इट। ओके, तो यस, डन। ओके, so yes, back to the main sheet। Okay, after the absolute reference and relative cell reference, we have the next concept, spell check। Okay, ठीक है, so click on the sheet 4 here।
कैन नाउ चेक इट यदि इन द एक्सेल यदि आपकी कुछ स्पेलिंग गलत है, ओके, तो यस हम स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सी सो वी हैव द सम वैल्यूज, सम टेक्स्ट हियर। हाँ, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, बट स्पेलिंग गलत है। ओके, तो मुझे स्पेल चेक करनी है ऑटोमेटिकली। ओके, सो ठीक है, आप इस सेल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट मोस्टली क्लिक ऑन A1 या समथिंग। ओके, स्टार्टिंग में आपको क्लिक करना है। नाउ चेक इट, सो विल गेट द स्पेल चेक ऑप्शन इन द रिव्यू। देयर इन द रिव्यू, यस वी हैव द स्पेलिंग ऑप्शन। यहाँ पे डायरेक्टली एक स्पेलिंग ऑप्शन है, उस पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। ओके, चेक इट। नाउ सी विल गेट द वन बाय वन इस शीट के अंदर जितने भी आपके पास टेक्स्ट है, यहाँ पे वन बाय जो रॉन्ग टेक्स्ट है वन बाय वन मिलेगा। ओके, सो इट्स अ इंजीनियर। ओके, सो आपको यहाँ पे सजेशन मिल रहे हैं अलग अलग, ये भी हो सकता है। सो यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन क्लिक ऑन द चेंज। चेंज देखो चेंज हो चुका है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब शो हो रहा है टीचर, या इट्स अगेन रॉन्ग। तो यू कैन क्लिक हियर, आपको जो चाहिए उसमें से सजेशन वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिक ऑन द चेंज। ओके, तो जितने भी आपके रॉन्ग, मतलब रॉन्ग मिस्टेक होगी, जो भी होगा आपका गलत स्पेलिंग, ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो। ओके, इट्स अ स्पेलिंग ऑप्शन विल गेट इन द रिव्यू टैब। ओके, चेक दिस वन। हाँ, यदि इग्नोर करना है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, एंड एट द लास्ट क्लोज इट। ओके, आपका क्लिक कहाँ पे होना चाहिए? ओके, स्टार्ट में कहीं भी, स्टार्ट में कहीं भी। एंड इन द शीट आपके पास जितने भी टेक्स्ट है, उसके अंदर जो भी रॉन्ग स्पेलिंग्स है वहाँ पे, ओके, वो आपको वहाँ पे शो होगा। ओके, सीधे। ओके, ठीक है, तो मेरा कर्सर यहाँ पे है B1 के पास। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट इन द रिव्यू टैब वी हैव द स्पेलिंग। ओके, यस, चेक करो आपके पास अवेलेबल है स्पेलिंग ऑप्शन इन द रिव्यू टैब। ओके, ओके, मे बी हाँ, प्लेसिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन, विच वर्जन यू आर यूजिंग। ओके, सो क्लिक ऑन द स्पेलिंग। नाउ सी यहाँ पे आपको शो होगा टीचर। ओके, जो भी नाम शो होगा यहाँ पे, जो गलत नाम है यहाँ पे शो होगा ऊपर, और आपको नीचे सजेशन भी मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन, आपको जो यूज करना है उसे सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द चेंज। ओके, उसके बाद चेंज पे क्लिक करना है। ओके, ठीक है, चेंज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड मिलेगा जो गलत है। Okay, so yeah, it's a nurse, again it's a wrong, so you can select the nurse from here and again click on the change. Okay, okay, do you want to continue checking at the beginning of the sheet? फिर से करना चाहते हो तो ठीक है, यदि नो तो नो। ओके, तो यस, करेक्शन हो चुकी है। ओके, चेक। ओके, डन। ओके, ओके, again click to the back to the main sheet। Okay? After the spell check, we are going to see the how to remove duplicate data। ओके, यदि आपके पास कुछ डेटा आ रहा है तो मे भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास डेटा के अंदर बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। ओके, सो वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। ओके, सो यस, इन केस वेयर द ऑप्शन डुप्लीकेट डेटा। Right, okay, in the data tools we'll get the duplicate data. Actually just symbol ये, okay, remove duplicate। okay, yeah, it's a symbol for the drop duplicates। okay, मतलब आप duplicates को drop भी कर सकते हो। okay, ठीक है, so come to the sheet, that's the sheet file। click on the sheet file। yes, we'll see how to remove the duplicate data। ओके, कम टू शीट। ओके, वहाँ पे क्लिक करना है आपको शीट, या इट्स अ शीट फाइल। अब देखो, सो वी हैव द नेम हियर, सम फर्स्ट नेम, फादर नेम एंड द सरनेम। ओके, अवी आशीष गुप्ता। ओके, दीज आर द सम नेम्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अवी आशीष गुप्ता, ओके, जैसे कि विजय राम काटेत है, ओके, ये डुप्लीकेट है। ओके, दिस रिकॉर्ड इज डुप्लीकेट। अगेन यू कैन सी द राज। ओके, राज इज आल्सो डुप्लीकेट। तो ये दो रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट है, बाकी तो सीख है, बाकी ऑल वैल्यूज आर यूनिक। ओके, तो मुझे क्या करना है, तो इस टेबल के अंदर मुझे चेक करना है कि डुप्लीकेट रोज कितनी है। ओके, डुप्लीकेट डेटा कितना है। सो यस, यू कैन सेलेक्ट द टेबल। अब आपका टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक ऑन द रिमूव डुप्लीकेट। ओके, सो विल गेट दिस ऑप्शन इन द डेटा टैब। इन द डेटा टूल्स विल गेट दिस सिंबल, ये सिंबल मिलेगा। मे बी थोड़ा सा आपकी प्लेसिंग अलग भी हो सकती है, चेक करो वो कहाँ पे है। ओके,
हाँ, यहाँ पे कॉलम्स कौन से चेक करने, कॉलम मुझे तीनों चाहिए। ओके, एंड देन जस्ट प्रेस ओके। ओके, ठीक है, ओके प्रेस करो। अब देखो विल गेट जस्ट यूनिक वैल्यूज। ओके, अब आपके टेबल के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज मिलेगी। ओके, विल नॉट गेट डुप्लीकेट डेटा। इसका मतलब हुआ जो सेकंड डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो चुकी है। ओके, ओके, हम डुप्लीकेट डेटा को हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, सीधे तो ये आपका डेटा था। ओके, आप अंडो कर सकते हो सीधे। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल। या इट्स माय टेबल, राइट? Okay, first select the table, then click on data tools, data tab. Okay, click on the data tab. In the data tab, yes, we have the data tools group. It's a group, data tool. Okay, in the data tool, yes, we'll get the option that's a remove duplicate. Okay, we'll get the option remove duplicate. Click there, and after that, okay, so okay, column, no, This is grayed out actually. Like data tools, I'm clicking on it, तो कुछ हो नहीं रहा है. uh, enable नहीं है क्या? ओके, आई थिंक आपने इनेबल एडिटिंग पे क्लिक किया था, हाँ, enable edit. बाकी एडिट हो रहा है सब कुछ। हाँ, बाकी तो हो रहा है. डेटा टूल्स पे नहीं हो रहा क्या? आई थिंक चेक करो एक बार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, एंड then just press the okay there. So okay, yes, we'll get just unique values. Done. Okay, 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 yeah. So this is the way to remove the duplicate values. Okay, again, okay, done. Okay, so again click to the back to the main sheet. Back to the main sheet. Yes, we have seen how to remove the duplicate data that is present in your table. After that, next option is the freeze pane. Okay, so click on the sheet 6 now. Click on the sheet 6. Okay, so I think we'll get this one. Okay, we'll get this one, right? Okay, take it. Now see there. So what is the freeze pane? Freeze pane मतलब, Like robo. मतलब उससे क्या करना, फिक्स करना। फिक्स मतलब नॉर्मली होता क्या है, यदि आप डेटा एंट्री करते हो या आपको डेटा देखना है, तो नॉर्मली क्या होता है, सपोज आपका ये आपका हेडर है। ओके, तो मुझे नीचे चेक करना है, तो नॉर्मली होता है कि हम नीचे जाते हैं पर आपको हेडर शो नहीं होता। या सेम थिंग, जैसे कि आप इस साइड में जाते हो, ओके, राइट साइड में, तो आपको इस साइड का कॉलम शो नहीं होता है। बट नॉर्मली कभी भी क्या होता है, फॉर फॉर डेटा एंट्री या मुझे चेक करना है कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो किसी रो को फ्रीज कर सकते हैं, किसी मल्टीपल रोज को भी हम फ्रीज कर सकते हैं। ओके, सी नाउ। ओके, सो ठीक है, तो एक एक तो आप क्या कर सकते हो, सी विल गेट द व्यू। इन द व्यू वी हैव द फ्रीज पेन ऑप्शन, राइट? ओके, इन द व्यू टैब, यस वी हैव द फ्रीज। सपोज मुझे क्या करना है, सो जस्ट फर्स्ट रो मुझे क्या करनी है, फ्रीज करनी है। ओके, सो इन द फ्रीज पेन डायरेक्टली ऑप्शन है दैट इज अ फ्रीज टॉप रो, मतलब फर्स्ट रो। ओके, जस्ट क्लिक देयर। देखो आपकी फर्स्ट रो फ्रीज हो चुकी है। अब चेक करो, आप नीचे जा रहे हो तो आपकी टॉप रो एज इट इज आपको शो होगी। ओके, आपकी टॉप रोज एज इट इज शो होगी। क्योंकि नॉर्मली होता है, इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि नॉर्मली हम डेटा एंट्री कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। ओके, तो हमें फ्रीज करना ही पड़ेगा। फ्रीज टॉप रोज या फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। फ्रीज फर्स्ट column. Okay, now see there. From here, I'm going to select the freeze first column. Okay, check. तो अब इस साइड में जा रहा हूँ तो अब देखो एक कॉलम भी फ्रीज हो चुका है। ओके, देखो फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ओके, दोनों को फ्रीज कर दो। ओके, अनफ्रीज करना है तो विल गेट द ऑप्शन अनफ्रीज पेन्स। आपको अनफ्रीज पेन का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपके दोनों अनफ्रीज हो जाएंगे। ओके, डन। सपोज मुझे टॉप टू या मतलब थोड़ा डेटा ज्यादा है, मुझे उससे क्या करना है, फ्रीज करना है। जैसे कि मुझे फर्स्ट वन टू थ्री। ओके, तो मैं थर्ड रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक मुझे फ्रीज करना है। ओके, सो उस रो को आपको सिलेक्ट करना है। सेम थिंग कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मुझे यहाँ तक मुझे फ्रीज करना है। सिलेक्ट द थर्ड रो एंड देन क्लिक ऑन द फ्रीज पेन। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रीज पेन पे। नाउ चेक इट। ओके, जहाँ तक सिलेक्ट किया था आपने, ओके, वन टू, ओके, वहां तक आपका ऊपर की
फ्रीज हो चुकी है। ओके, दो दो रोज उसके ऊपर, ओके, जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था। ओके, तो मल्टीपल रोज को भी फ्रीज कर सकते हैं। ओके, ट्राई दिस वन, सॉरी तो परत दाखव. सी है। ओके, चेक इट। ओके, मुझे क्या करना है, मल्टीपल रो को फ्रीज करना है, बट बिफोर दैट अनफ्रीज, पहले अनफ्रीज कर दो यदि आपने फ्रीज किया है। ओके, अनफ्रीज ऑप्शन आ रहा है तो अनफ्रीज कर दो। ओके, ओके, अब मुझे क्या करना है, सो दैट इज योर फर्स्ट रो, दैट इज योर सेकंड रो। ओके, तो मुझे फर्स्ट टू रो को या थ्री रो को या चार भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक मुझे क्या करना है, डेटा फ्रीज करना है। ये डेटा आपका एज इट इज होना चाहिए। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब इससे ऊपर होगा, इसका मतलब इससे ऊपर होगा, तो जो भी कौन सी भी एक रो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सिलेक्ट द रो एंड क्लिक ऑन द फ्रीज पेज। फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पे। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको एक लाइन मिलेगी थोड़ी सी। ओके, दैट मीन्स इट्स अ फ्रीज। ओके, यहाँ तक आपका डेटा फ्रीज हो चुका है। ओके, तो सेम थिंग यू कैन डू फॉर द कॉलम, कॉलम के लिए भी कर सकते हो। यू ऑल्सो सिलेक्ट द कॉलम एंड फ्रीज पेज, तो यहाँ तक आपका डेटा क्या होगा, फ्रीज होगा। ओके, रोज के लिए भी कर सकते हो, कॉलम के लिए भी कर सकते हो। ओके, चेक दिस। हाँ, बाद में आपको अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज कर सकते हो। नहीं नहीं, डेटा एंट्री के लिए होती है, डेटा चेक करने के लिए होती है, बहुत सारे टेबल बहुत बड़ा होता है ना नॉर्मली। ओके, तो आपको चेक करना है, हर बार आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा ना, तो या सपोज ये आपका हेडर है, आप नीचे जा रहे हो तो आपको ये वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू कौन सी है, पता ही नहीं चलेगा। राइट, तो हमें फ्रीज करना ही पड़ता है। ओके, हाँ, नहीं करना है तो यस, यू कैन क्लिक ऑन द अनफ्रीज फ्रेंड्स। ओके, उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आफ्टर दैट कम टू द अगेन मेन शीट, बट यहाँ पे लिंक नहीं है, तो कहीं से भी आप मेन शीट पे जा सकते हो बाकी। ओके, okay, after the freeze panes, yes, we have the if function now. Okay, done. After the freeze, we have the if function. Okay, so click on the sheet 7. Okay, sheet 7 पे आपको क्लिक करना है। Okay, done. Okay, ठीक है, now yes, we have the some logical formulas, so if is one of the logical formula. Okay, so how to use the if? Okay, I think we have seen, right? Okay, see there, if मतलब based on the condition you can perform something. Okay, either your condition will become true or false, right? Okay, ठीक है, सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, वी हैव द सम स्टूडेंट्स, वी हैव द परसेंटेज देयर, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यदि उसके मार्क्स ग्रेटर देन 45 है, देन इट्स अ पास, अदरवाइज इट्स अ फेल। ओके, अदरवाइज इट्स अ फेल। तो इसका मतलब होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, if. Okay, see there, first see how to use the if formula. Okay, I'm using the if. Okay, so yes, okay, if भी ifs भी है। ओके, अब ज्यादा मल्टीपल कंडीशन है तो यस वी कैन यूज द इफ्स, बट सिंगल कंडीशन है देन जस्ट यूज द इफ। ओके, ठीक है, सो सेलेक्ट द इफ फॉर्मूला। फर्स्ट यू हैव टू राइट द लॉजिकल टेस्ट। सो व्हाट इज योर लॉजिकल टेस्ट, मार्क्स इज ग्रेटर देन 45। ओके, एक तो आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो व्हाट इज द मार्क्स, इट इज योर मार्क्स। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 45 या इक्वल टू लिख सकते। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, यदि आपके जो मार्क्स है इट्स इट्स ग्रेटर देन 40, इक्वल टू 45, ठीक है, ये आपकी लॉजिकल टेस्ट है। अब आपकी जो लॉजिकल टेस्ट होगी उसका आंसर एक तो ट्रू होगा या एक तो फॉल्स होगा। करेक्ट, एक तो ट्रू होगा या एक तो फॉल्स होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू पास वैल्यू इफ ट्रू। यदि ट्रू है तो आपको क्या करना है, वी हैव टू शो इट्स अ पास। पास मतलब एज अ स्ट्रिंग आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज इन द फॉर्मूला आपको टेस्ट लिखना है, तो यू हैव टू यूज द डबल, सिर्फ डबल कोटा, नॉट अ सिंगल, नॉट अ ट्रिपल। ओके, जस्ट यूज द डबल कॉमा, वैल्यू यू फॉल्स। यदि फॉल्स हो रहा है तो क्या पास करना है, सो यू हैव टू पास फेल। ओके, ये कंडीशन फेल मतलब फॉल्स हो जाएगी, तो इट्स अ फेल देयर, सो यस, देन क्लोज द पैरेंथेसिस, देन प्रेस द एंटर, या आई गॉट द पास, आई गॉट द पास ही। तो अब मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। ओके, फ्रीज करने की जरूरत है कुछ नहीं, बिकॉज इट्स अ सेल। ओके, वो तो रिलेटिव है, ओके, वही चाहिए मुझे। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जस्ट ड्रैग इट, सो यस विल गेट द पास। एक्चुअली बिफोर, ओके, बिलो 45 कोई नहीं है। ओके, ठीक है, सीधी, या इट्स ई फॉर्मूला।
check. If then condition criteria, okay, marks greater than equal to 45, comma, value true, it's a pass, value false, it's a fail. Try this one. कि सबको सभी पास मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि बिलो 40 मार्क्स नहीं है उसके अंदर, so we'll get the pass, all values will get the pass. Okay, again check, it's very simple. Okay, see here, okay, write the equal to, then start with the if, then select the if formula. Okay, first you have to pass the logical test. What is your logical test? These marks should be greater than equal to 45. For the marks you have to select the relative reference, मतलब you have to select the same. Okay, comma, वैल्यू इफ ट्रू, यदि ट्रू हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए, यस वी हैव टू, मुझे क्या एंटर करना है, इट्स अ पास देयर। यदि आपकी कंडीशन ट्रू हुई सो देन पास हियर, एंड इफ यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है देन पास, ओके, यूज फेल, देन क्लोज पैरेंथेसिस। पास एंड फेल एज इट इज डबल कोट के अंदर होगी। ओके, बट रिमेंबर कॉमा देना पड़ेगा, हर एक पैरामीटर के बाद आपको कॉमा देना है। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया कॉमा, value true, comma, value false. Okay, then press the enter. Okay, done. ओके, आफ्टर दैट, अब थोड़ा सा अलग देते हैं एग्जांपल। सपोज यहाँ पे कुछ मेरे पास फ्रूट्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगोस, लाइक दिस। ओके, ठीक है, जहाँ पे कुछ यस नो होगा तो इसे आपको डिलीट करना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो, सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला हियर, फर्स्ट सी एंड देन यू कैन ट्राई। ओके, सो आई एम यूजिंग द इफ हियर। इफ, सो फर्स्ट इज लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब ये जो फ्रूट की लिस्ट है, या दिस इज अ लिस्ट। ओके, तो यदि ये ऑरेंज है तो मुझे प्रिंट करना इट्स ऑरेंज, अदरवाइज इट्स नॉट ऑरेंज। ओके, जो फ्रूट की लिस्ट यदि ऑरेंज है तो ऑरेंज होना चाहिए, इट्स ऑरेंज, इट्स नॉट ऑरेंज। ओके, दो ही कंडीशन है, मतलब दो ही आउटपुट चाहिए मुझे, या तो ये या तो ये। ओके, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, राइट, केस मतलब इट्स अ फ्रूट इज इक्वल टू ऑरेंज। ओके, ऑरेंज लिखना है तो आपको डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। ओके, ठीक है, यूज द एज इट इज देन। ओके, आई एम यूजिंग दिस स्पेलिंग ऑरेंज। ओके, दैट इज योर कंडीशन। ओके, कॉमा, वैल्यू ट्रू। ओके, तो मुझे क्या शो करना है, तो जो शो करना है वो टेक्स्ट है, इसका मतलब वी हैव टू यूज द डबल कोट हियर। सो इफ इट्स अ ट्रू देन मींस इट्स ऑरेंज, करेक्ट। डबल कोट कंप्लीट। ओके, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, यदि फॉल्स आ रहा है तो मुझे क्या शो करना है, इट्स नॉट ऑरेंज। ओके, कुछ भी हो सकता है बट जस्ट एग्जांपल, इट्स नॉट ऑरेंज, डबल कोट कंप्लीट एंड देन क्लोज द पैरेंथेसिस एंड देन प्रेस द enter. Okay, so it's not orange, right? Yes, you can drag the formula. Okay, check it. जहाँ पे ऑरेंज आपको यहाँ पे, yes, we'll get it's orange, otherwise it's not orange. Okay, check this one. Okay, equal to के लिए सिर्फ सिंपल सिंगल टाइम इक्वल टू यूज करना है इन द एक्सेल। if this fruit is orange then I have to print it's orange, otherwise it's not orange. Okay, K7 is equal to orange, comma, value true, value false। हमें शो करना है इसलिए हम डायरेक्टली शो कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, राइट।
ओके डन। ओके ठीक है। ओके नाउ जहाँ पे 1496 लिखा है उसे आपको डिलीट करना है। ओके डिलीट दिस 1496। ओके तो मुझे क्या चाहिए देखो, यदि यहाँ पे यस आ रहा है, यहाँ पे यस आ रहा है तो क्या होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज मार्क्स है ना, ये जो मार्क्स इसकी मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। ओके यदि यस आ रहा है तो, और यहाँ पे यस नहीं है तो इसका मतलब मुझे एवरेज चाहिए। ओके यू नो सम इज समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज, एवरेज मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके तो या ये लॉजिक मुझे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यदि ये इस सेल के अंदर यस है तो मुझे इस सभी मार्क्स की सम चाहिए। ओके यदि यस नहीं है मतलब नो होगा या कुछ भी होगा सपोज, तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो इसका मतलब होगा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा शायद। ओके नाउ सी हाउ टू डू इट। ओके सो आई एम यूजिंग इफ। ओके ठीक है, सो या parenthesis ओपन, राइट, फर्स्ट यू हैव टू पास द लॉजिकल टेस्ट। व्हाट इज लॉजिकल टेस्ट, दिस सेल इज इक्वल टू ईएस, यदि ये ईएस है, करेक्ट, दैट इज योर लॉजिकल टेस्ट। यदि यस है देन विल गेट द ट्रू, अदरवाइज विल गेट द फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है, यदि यस आ रहा है तो आपको करना क्या है, we have to find out the sum। okay ठीक है, so that means we are going to use the again here sum formula। okay किसकी सम चाहिए मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक। okay जो भी आपकी सेल्स होगी यू कैन सेलेक्ट द। ओके ठीक है, कौन इसकी सम मिलेगी, वैल्यू फॉल्स, वी वांट एवरेज। ओके एवरेज के लिए भी फॉर्मूला है, यस एवरेज के लिए भी फॉर्मूला है, वी हैव द एवरेज फॉर्मूलास। ओके एवरेज, ओके आई कैन सेलेक्ट द नंबर्स। ओके उसी सेल को हमें फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा जितनी आपने, ओके पूरी सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, आपको जितनी पूरी सेल सिलेक्ट करनी है। ओके ओके यदि यस है तो यस समेशन होगी, अदरवाइज एवरेज होगी। देखो एवरेज फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आपका इफ का भी क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, रिमेंबर, एंड देन प्रेस द एंटर। सी आई गॉट 132। हाँ कुछ सेल्स बाकी इसलिए आपको मुझे वार्निंग मिल रही है, बट ठीक है यू कैन चेंज द रेंज। ओके रेंज हम चेंज कर सकते हैं। ओके ट्राई दिस। ओके ये आपको ट्राई करना है। ओके आई थिंक यू गॉट दिस। इफ दिस cell contain S, we want summation, otherwise we want average। Okay so this is your data। फॉर्मूला शो करा। okay see there। okay now, okay I'm using the if again, if what is your logical test, if this cell is equal to yes, right, this cell is equal to yes, ये आपका फॉर्मूला होगा, एक कंडीशन होगी। ओके दिस सेल इज इक्वल टू यस, वैल्यू ट्रू, ट्रू है तो क्या चाहिए मुझे, सम। ओके दैट मींस यू हैव टू यूज द सम फॉर्मूला हियर। देखो सम फॉर्मूला ओपन हो चुका है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द मल्टीपल सेल्स। ओके ये सिलेक्ट करना है दिस सेल। ओके सम फॉर्मूला क्लोज, देन राइट द कॉमा। अब क्या शो हो रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, देन यू हैव टू यूज द एवरेज हियर। ओके सिलेक्ट द एवरेज। ओके फॉर द एवरेज अगेन यू हैव टू सिलेक्ट दिस सेल्स, वही हो गई, सो अगेन क्लोज योर फॉर्मूला। बट हाँ लास्ट में और एक पैरेंथेसिस बाकी, इफ का पैरेंथेसिस। ओके रिमेंबर, जित ओके यदि आप फॉर्मूला ओपन कर रहे हो तो इट्स कंपल्सरी टू क्लोज द फॉर्मूला। ओके सो ठीक है, नाउ इट्स अ parenthesis for the if। yeah this is the formula, check। अगर यस के नीचे नो लिखा और वो ट्रैक किया तो एवरेज आएगा। नहीं यस की जगह नो लिखा, यस के नीचे अगर नो नो लिखा और वो ऐसा ट्रैक किया तो क्या आएगा? अब यस की जगह नो लिखा नीचे तो नीचे यस के नीचे नो लिखा। हाँ ठीक है, नहीं आ जाएगी, कोई एवरेज आ प्रॉब्लम, जाएगा। हाँ एवरेज भी आ जाएगा। ओके क्योंकि ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ड्रैग होगा तो ये भी ड्रैग होगी ना रेंज। वही। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay? हाँ बट आपको ये फ्रीज करना पड़ेगा, जो आपने ये जो सिलेक्ट किया है ना ये फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे चली जाएगी। ये स्टार्ट होगी यहाँ से और ये थोड़ा एक सेल नीचे चली जाएगी। ओके जो रेंज है ना, रेंज आपको फ्रीज करनी पड़ेगी। ओके रिमेंबर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ रेंज जो हमने सिलेक्ट की है ना, वो आपको सम की रेंज और एवरेज की रेंज फ्रीज करनी पड़ेगी। फिर वो F7 F2 F25 तो वो हाँ दोनों सिलेक्ट करके फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब लाइक दिस। ओके इसे आपको सिलेक्ट करना है एंड फ्रॉम कीबोर्ड प्रेस F4, फ्रीज हो चुकी है। ओके अगेन सपोज दिस वन, सिलेक्ट दिस रेंज F4। okay now yeah it's a freeze now, and then press the enter। okay then press the enter।
ओके, उस रेंज को फ्रीज करना है। यदि आपको फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ेगा तो रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा, बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगेन चेक, या इट्स अ फॉर्म, या डन। ओके, ठीक है, आफ्टर दैट, okay, so back to the main sheet. Okay, click on the main sheet. Now after the if function, yes, we are going to see the VLOOKUP. Okay, so click on the sheet 8. Yeah, mostly yes, mostly we are using the VLOOKUP formula. Okay, सबसे ज्यादा जो formula होता है, yeah, it's a VLOOKUP or the HLOOKUP. Okay, now what is VLOOKUP? मतलब इसका काम क्या होता है? कुछ वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मतलब we can search the value for the particular value, एक वैल्यू के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू सर्च कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? ओके, वीलुकअप के लिए कंडीशन होती है जो आपकी लुकअप वैल्यू है। सो सपोज यहाँ पे एक कंपनी नेम है, तो मुझे सपोज इस केजी एजेंसीज के लिए मुझे टोटल अमाउंट क्या करनी, सर्च करना है। ओके, तो केजी एजेंसी बनेगी आपकी लुकअप वैल्यू। ओके, इसके लिए आपको क्या सर्च करना है, टोटल अमाउंट सर्च करनी है। तो लुकअप वैल्यू, ओके, लुकअप वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड में ही होगी। कहाँ पे होगी? ऑलवेज लेफ्ट साइड में होगी। और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी जो आपको शो करनी है, जो सर्च करनी है, ऑलवेज वो कहाँ पे होगी? राइट साइड में ही होगी। ओके, दैट इज अ कंडीशन। ओके, सपोज ये आपका टोटल कॉलम इस साइड में है। ओके, लुकअप वैल्यू केजी एजेंसी यहाँ पे और टोटल आपका कॉलम यहाँ पे, तो सर्च होगी। सिंपली वी लुकअप से सर्च नहीं होगी, बिकॉज वी लुकअप ऑलवेज लुकअप्स द राइट वैल्यू। ओके, वो सिर्फ राइट वैल्यू सर्च कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ सी हाउ टू यूज द वी लुकअप फॉर्मूला। ओके, या मोस्टली वी आर यूजिंग द लुकअप फॉर्मूला, बहुत बार इसे यूज करते हैं। Okay? ठीक है, नाउ सी द हाउ टू यूज द VLOOKUP। सो वी मतलब इट्स अ वर्टिकल। यदि आपका डेटा वर्टिकल है देन यू हैव टू यूज द VLOOKUP। यदि आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है देन यू हैव द EH लुकअप। हाँ, नॉर्मली दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने तो एक एक्स लुकअप भी है एक्चुअली। ओके, बट ठीक है, बहुत सारे वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। ओके, विल गेट द एक्स लुकअप इन द ऑफिस 365 या जो लेटर वर्जन है उसमें आपको मिलेगा ये। Okay, okay, ठीक है, now see how to use the VLOOKUP now. Okay, so first see, so I'm going to start with the VLOOKUP. Yeah, it's a VLOOKUP formula. First select the formula, right? Okay, first is lookup value. तो मुझे केजेंस, ये मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू। ओके, इसके लिए मुझे क्या शो करना है, टोटल अमाउंट। ओके, केजेंस इज यूर लुकअप वैल्यू। ओके, ठीक है, कॉमा आफ्टर द लुकअप वैल्यू व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर, टेबल एरे। देखो बोर्ड शो होगा आपके सामने, आपको इसके बाद क्या डालना है, इसके बाद क्या डालना है। ओके, नेक्स्ट इज अ टेबल एरे। टेबल एरे मतलब इट्स योर होल टेबल इंक्लूडिंग हेडर। ओके, आपको सब कुछ डालना है। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट द होल टेबल, comma then column index number. So what is the column index number? Okay, because we have to show the total, so in the particular array this is first, this is second, this is third, and this is your fourth. That means column number hoga fourth, comma then we have the exact match at the approximate, but mostly select the exact match. ओके, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब क्या होता है, कभी भी स्पेलिंग गलत है, नॉर्मली वो अप्रोक्सीमेट मैच वो दे सकता है, बट मोस्टली वो आंसर गलत भी मिल सकता है। उसके लिए कंडीशन, आपको जो डेटा होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट, या बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। बट ठीक है, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द जीरो, जीरो फॉर द एग्जैक्ट मैच। जीरो मतलब फॉल्स। ओके, फॉल्स भी लिख सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं, एंड देन क्लोज योर पैरेंथेसिस एंड प्रेस द एंटर। यस, आई गॉट 64 समथिंग, एंड सी देयर फॉर द केज एजेंसीज, या इट्स अ टोटल अमाउंट, राइट। इट्स अ, नाउ सी सपोज यहाँ पे मैंने एलेक्स एजेंसी कॉपी किया, तो देखो उसकी टोटल अमाउंट शो होगी, बिकॉज़ वी हैव सिलेक्टेड दिस लुकअप वैल्यू एज़ अ सेल। ओके, यदि ये वैल्यू चेंज होगी तो आपकी लुकअप, आपकी टोटल वैल्यू भी यहाँ पे शो होगी, चेंज होगी। नाउ चेक दिस। ओके, तो वी लुकअप तो पूछा ही जाएगा यदि एक्सेल है। यस, व्हाट इज वी लुकअप? ओके, डन। Okay, see again, it's very simple how to use the VLOOKUP. So yes, we have to start with the VLOOKUP. Okay, so click on the VLOOKUP. Okay, parenthesis open. In the parenthesis, we have to pass the multiple parameter.
So first parameter is lookup. It's in the bold. That means you have to pass the lookup value. तो आपको आपकी lookup value क्या है? Alex agency. Okay, मैंने यहाँ पे लिखी है. ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. But I'm using this one, Alex agency. That's my lookup value. Okay, after that table आ रहे हैं. Okay, table आ रहा है कौन सा है आपका? It's whole table आ रहा है. Okay, ठीक है. After table आ रहे हैं, column number is total शो करना है तो it's a 4 column. Okay, it's a first, it's a second, it's a third, and it's a fourth. And at the last we have the approximate exact match. For the exact match you can write the 0 there. Okay, one मतलब it's approximate, but mostly use the exact match. Okay, यदि आप one use कर रहे हो तो maybe you will get the wrong answer. Okay, close it and then press the enter there. Yeah, we'll get the particular value. If it's Alex agencies, we'll get the 40, 58 something. Okay. हाँ, फॉर्मूला ड्रैग करना है तो आपको उसमें से वो टेबल आरएफ यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई जरूरत नहीं. Okay. Check. Okay, try this one. It's very important. Okay, done. Okay, okay, ठीक है. After the sheet 8, come to the sheet 9. Okay, I think done. Okay, so come to the sheet 9. Now we'll see the reverse lookup. Okay, now we'll see the reverse lookup. Now, okay, come to sheet 9. Huh? Sheet 9. It's a reverse lookup. ओके, अब देखो डेटा क्या है. तो यहाँ पे मेरे पास कंपनी नेम है. ओके, ठीक है. तो अमाउंट यहाँ पे, जीएसटी अमाउंट यहाँ पे, और टोटल अमाउंट इस साइड में है. तो मुझे क्या करना है, जो सपोज केजी एजेंसी से उसकी टोटल अमाउंट शो करनी है. ओके, लुकअप वैल्यू ये है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी ये है. ओके, तो वी लुकअप से सर्च होगी नहीं होगी, बिकॉज वी लुकअप ऑलवेज लुकअप फॉर द राइट वैल्यू. ओके, इट्स कंपल्सरी. ओके, तो अब ये लुकअप वैल्यू उसे इस साइड में सर्च करना है तो नहीं कर सकते. ओके, हाँ कर सकता है, हमें रिवर्स लुकअप कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें चूज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या वी कैन गो विद द इंडेक्स विद द मैच. हमने एक इंडेक्स विद द मैच फॉर्मूला भी देखा था, उसके साथ भी जा सकते हैं, या एक चूज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट सी कैसे करना है, जस्ट सी, देन यू कैन ट्राई इट. जस्ट सी, इट्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो यस, अब देखो मैं वी लुकअप यूज कर रहा हूँ. ओके, आई एम यूजिंग द वी लुकअप. तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लुकअप वैल्यू. तो केजी एजेंसी इज माय लुकअप वैल्यू. ओके, ये केजी एजेंसी आपकी लुकअप वैल्यू. कॉम, उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, टेबल आ रहे, बट टेबल आ रहे तो नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि वो राइट में ये तो नहीं चलने वाला. तो हम उस टेबल को क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स डाल देंगे, टेबल को रिवर्स करेंगे. देखो टेबल के अंदर क्या होगा, मैं जो टेबल मुझे यहाँ जहाँ पे टेबल आ रही है ना, वहाँ पे टेबल आ रहे कैसे क्रिएट होगा. देखो, तो मेरा फर्स्ट कॉलम ये होगा, फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम कौन सा होगा, ये होगा. ओके, जो टेबल क्रिएट होने वाला है वो हम बाय यूजिंग चूज फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं. तो फर्स्ट कॉलम, उस चूज फॉर्मूला से जो टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, ये होगा. एंड सेकंड कॉलम कौन सा होगा, ये होगा. अब होगा, सर्च होगा, होगा ना. देखो हम टेबल ही चेंज कर रहे हैं, टेबल को रिवर्स कर रहे हैं. ओके, गॉट दिस थिंग. ओके, वी लुकअप क्या करते हैं, ऑलवेज लुकअप फॉर द
राइट वैल्यू, बट हम टेबल हमारा चेंज करें ना, टेबल जो टेबल न्यू टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम क्या होगा, ये होगा। तो ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये, तो इसका मतलब ये व्हील को वापस चल सकता है। ओके, नाउ सी दैट हाउ टू क्रिएट द टेबल अरे। टेबल अरे कैसे क्रिएट करना है, ओके, रिवर्स टेबल अरे कैसे क्रिएट करना है। सो आई एम यूजिंग द चूज फार्मूला हियर। एक चूज फार्मूला होता है, ओके, आई थिंक चूज फार्मूला भी देखा होगा। ओके, अब न्यू बैच उसमें नहीं, बट जो कंप्लीट हो चुकी बैच उसमें चेक कर सकते हो, वी हैव सीन द चूज आल्सो देयर। बट ठीक है, सो सिलेक्ट द चूज। ओके, select the choose here. Wait. Okay. So yes, I'm using the VLOOKUP. Okay, so what is your lookup value? KG agency is your lookup value. Okay, टेबल अरे सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, रिवर्स टेबल हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, वी आर यूजिंग द चूज फॉर्मूला हियर। ओके, सेलेक्ट द चूज फॉर्मूला। Okay, in the choose formula, see which are the parameter you have to pass. Okay, just see. So first you have to pass the index number. Okay, इस मुझे दो कॉलम चाहिए। कितने कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए। ओके, आई एम जस्ट कंसिडरिंग कंपनी नेम एंड द टोटल। ओके, बाकी जान, टेबल टेबल क्या क्रिएट होगा, सिर्फ कंपनी नेम और टोटल। ठीक है, टू क्रिएट द टू सिलेक्ट द टू इंडेक्स टू कॉलम, वी हैव टू यूज द एरे कंसेप्ट। यस, इन द एक्सेल वी हैव द एरे कंसेप्ट। सो एरे मतलब वी हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो वन कॉमा वन एंड द टू। ओके, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब कितने इंडेक्स है, वन एंड टू। ओके, ठीक है, कॉम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वन और टू लिख दिया, क्योंकि दो कॉलम मुझे चाहिए। तो यस, वी हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू फर्स्ट, मतलब जो आपने वन सिलेक्ट किया है उसकी वैल्यू क्या है। ओके, उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस टेबल, दिस कॉलम, राइट, ये आपकी फर्स्ट। ओके, ओके, ठीक है। अब वैल्यू टू क्या है, टू ही लिखे हमने, इसका मतलब ये क्या होगी आपकी वैल्यू सेकंड। ओके, देखो चूज से हमारा टेबल ये फर्स्ट कॉलम बन गया, और ये सेकंड कॉलम है जो चूज से होने वाला है ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सी। ओके, ओके, ठीक है, नाउ चूज फॉर्मूला इज कंप्लीट। चूज फॉर्मूला इज कंप्लीट, ओके, ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम कहाँ पे, विलुकअप के अंदर। ओके, तो कॉलम नंबर क्या देना पड़ेगा, टेबल देखो ना, टेबल को शो क्या करना है, टू। टेबल रिवर्स हो चुका है, इसका मतलब टोटल का इंडेक्स नंबर क्या है, टू है। सो यू हैव टू गिव द टू हियर। ओके, कॉमा, एग्जैक्ट मैच। ओके, करेक्ट, क्लोज द पैरेंथेसिस। ओके, नॉर्मली इट्स एरे, यदि एरे होता है, यदि आप एरे यूज करते हो कर्ली ब्रैकेट, तो टू रन दिस फॉर्मूला वी कैन यूज द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, अदरवाइज चेक कर लेते, एंटर प्रेस कर लेते, सो मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट टू रन द एरे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर यूज करते हैं। See, I got the 64,000. Yeah, it's a correct. Okay, it's a correct. Okay, so this is the way to reverse lookup. Okay, formula वही है, सिर्फ टेबल को हम रिवर्स करते हैं by using choose. ओके, एक्चुअली ये VLOOKUP क्या कर रहा है, राइट राइट वैल्यू ढूंढ रहा है। ओके, वो तो राइट ही कर रहा है, बट टेबल हमारा रिवर्स है। ओके, चेक दिस। ओके, सी फर्स्ट लुकअप वैल्यू, केजी एजेंसी जो भी नाम होगा वहाँ पे चेक कर सकते हो, दैट्स योर लुकअप वैल्यू, कॉमा, देन सेलेक्ट द चूज फॉर्मूला। इन द चूज फॉर्मूला फर्स्ट पैरामीटर इंडेक्स नंबर। Okay, index number, where you have to pass the curly bracket, in the curly bracket you have to pass 1 comma 2। okay, ये दो कॉलम चाहिए, इसलिए 1 comma 2। इंडेक्स नंबर के बाद कॉमा, वैल्यू फर्स्ट, दैट इज योर कंपनी नेम कॉलम। ओके, कॉमा, वैल्यू सेकंड, दैट इज योर टोटल कॉलम। ओके, वो पूरा कॉलम या जो भी चाहिए उतना ले सकते। क्लोज द चूज फॉर्मूला, क्योंकि दो ही कॉलम हमने सिलेक्ट किए थे। देन 2 इज द लुकअप वैल्यू, लुकअप कॉलम नंबर, एंड 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। एरे वाला ब्रैकेट बंद कहाँ होगा? नहीं, वही पे 1 comma 2, कर्ली ब्रैकेट 1 comma 2, कर्ली ब्रैकेट खत्म। तो आपने choose दिया ना क्या? हाँ, ब्रैकेट्स, राइट? दो ब्रैकेट है choose। ओके, चूज फॉर्मूला स्टार्ट होगा, चूज मतलब पैरेंथेसिस ओपन होगा, इन द पैरेंथेसिस फर्स्ट यू हैव टू पास द कर्ली ब्रैकेट। ओके, अगेन यू हैव टू सी, एक बार ट्राई करके देखो, विल सी अगेन। इंडेक्स नंबर के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लेना है, चूज फॉर्मूला के अंदर जो इंडेक्स नंबर है, कर्ली ब्रैकेट 1 comma 2, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, चूज फॉर्मूला, रिमेंबर चूज फॉर्मूला क्लोज होगा
VLOOKUP भी क्लोज होगा. Okay, remember this. So this is array concept. Curly bracket means array. To select the multiple values at the same time, yes, we can use the array. And to run the array, also we can use the control plus shift plus enter. यदि आपको रन नहीं हो रहा है, कुछ गलत एरर आ रहा है, तो यू कैन यूज द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर. इसे भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एरे यूज कर रहे हो तो वी हैव टू यूज द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर टू रन द एरे. ओके, ऐसे कॉमा है ऐसे मत जाओ. गो थ्रू योर फॉर्मूला. आपका फॉर्मूला कहाँ पे जा रहा है चेक करो. फॉर्मूला के अंदर सब कुछ शो होता है, आपको देना क्या है, उसके बाद देना क्या है, क्या रखना है. ओके, यदि आप डायरेक्टली आप देख रहे हो आप कॉमा लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, तो वो रट्टा हुआ. तो आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको फॉर्मूला वो कंसेप्ट पता होनी चाहिए. ओके, अगेन विल सी दैट. ओके, ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं. ठीक है. ओके, टोटल केजी एजेंसीज यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है. ओके, सी अगेन सी जिनका नहीं हुआ, यस यू कैन सी. सो यस, वी आर यूजिंग द व्हील. ओके, व्हील का मतलब पैरेंथेसिस ओपन. ओके, रिमेंबर व्हील का पैरेंथेसिस ओपन है तो उसे क्लोज कहीं ना कहीं पे करना ही पड़ेगा. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लुकअप वैल्यू. दैट्स माय लुकअप वैल्यू, इसके लिए मुझे सर्च करना है. कॉमा. टेबल आरे नहीं दे सकते, क्योंकि टेबल आरे मुझे रिवर्स क्रिएट करना है बाय यूजिंग चूज. ठीक है, जो जहाँ पे टेबल आ रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द चूज फॉर्मूला हियर. ओके, नाउ चूज फॉर्मूला इज ओपन. ओके, पैरेंथेसिस किसका ओपन है, चूज फॉर्मूला का. इन द चूज फॉर्मूला फर्स्ट यू हैव टू पास द इंडेक्स नंबर. मतलब इसके अंदर आपको कितने कॉलम क्रिएट करने, जस्ट रिमेंबर. ओके, तो कितने, इस टेबल के अंदर कितने कॉलम हो गए, दो. सो दो के लिए हमें ओके 1 कॉमा 2 ऐसे नहीं लिख सकते. ओके, मतलब वो अलग अलग पैरामीटर होते हैं. सो वी हैव टू यूज द एरे कंसेप्ट. ओके, जहाँ पे इंडेक्स नंबर है, सो वी हैव टू यूज द एरे कंसेप्ट 1 कॉमा 2. तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, एरे खत्म हुआ. ओके, वी आर यूजिंग एरे कंसेप्ट जस्ट फॉर द इंडेक्स नंबर. ओके, कॉमा. ओके, जो ओके, सो नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू 1. अब जो 1 है, आपने 1 लिखा है, उसकी वैल्यू क्या है. ओके, वैल्यू 1 क्या होगी, या दिस 1. ओके, कॉमा. वी हैव देन वैल्यू 2. यदि आप 1 कॉमा 3 लिखते हो तो वो भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, बट ठीक है, सो वी हैव सिलेक्टेड जस्ट 1 एंड द 2 देयर. ठीक है, तो योर चूज फॉर्मूला इज कंप्लीट. ओके, योर चूज फॉर्मूला इज कंप्लीट. राइट. ओके, ठीक है, तो क्लोज द पैरेंथेसिस. ये चूज फार्मूला का पैरेंथेसिस होगा. देन गिव द कॉमा. कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक VLOOKUP कंप्लीट नहीं हो चुका. ओके, कॉमा. कॉमा के बाद यस वी हैव टू गिव द कॉलम इंडेक्स नंबर. अब कॉलम नंबर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आपका जो टेबल क्रिएट हुआ है उसके अंदर टोटल 2 पे आ रहा है, क्योंकि रिवर्स जा रहा है. ओके, कॉमा. देन यू हैव टू सिलेक्ट द 0. 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच. क्लोज द पैरेंथेसिस एंड देन प्रेस द एंटर. या एरे तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर भी प्रेस कर सकते हो. ओके, एरे वाइज ऑपरेशन हो रहा है तो नॉर्मली, बट ठीक है, ट्राई करो. यदि नहीं हो रहा है तो आप ओके, तो मुझे तो आंसर मिल रहा है. यदि नहीं हो रहा तो यस यू कैन यूज द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर. चेक करना काहीतरी चुकलंच असणार. डन. क्या, ओके, सब कुछ करेक्ट है. देखो, सब कुछ करेक्ट नहीं रन हो रहा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जब फॉर्मूला क्लोज होगा ना आपका, लास्ट में पैरेंथेसिस होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके देखो रन हो रहा है. तो लास्ट में पैरेंथेसिस कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे कर्सर है आपका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर.
यदि नहीं हो रहा है तो नॉर्मली कभी एरे होता है तो कभी नहीं हो सकता, तो एरे को रन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। बट आई थिंक कुछ गलत होगा, चेक करो। ओके डन। ओके ठीक है, सो ओके आफ्टर दैट, ओके नहीं हुआ तो बाद में थोड़ा सा ट्राई कर लेना। ओके नाउ सी द सेम थिंग, हम रिवर्स लुकअप इंडेक्स विद द मैच भी कर सकते हैं। ओके हमने एक इंडेक्स मैच फॉर्मूला भी देखा था। ओके सीधे इंडेक्स विद द मैच, तो सीधे तो यहाँ पे कर लेता हूँ। सो मेरे पास केजी एजेंसी टोटल है, तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इंडेक्स विद द मैच। ओके आप इंडेक्स और मैच फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट ठीक है, सी हाउ टू यूज दिस। सो हमारे पास एक एक्चुअली इंडेक्स विद द मैच इज अल्टरनेटिव टू द लुकअप एंड द, ओके यस लुकअप और वीलुकअप के लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। ओके बहुत सारे में भी, ओके अगले सेशन या किसी सेशन में होने वाला है। ओके या जिनकी बैच कंप्लीट हुई उन्हें पता हो। नाउ सी सो इंडेक्स, फर्स्ट सेलेक्ट द इंडेक्स नाउ। इन द इंडेक्स वी हैव टू पास द एरे, रो नंबर एंड द कॉलम। ओके ऐसी तीन चीजें पास करनी पड़ती। ओके नाउ सी दे, सो फर्स्ट यू हैव टू पास द एरे, बट नाउ सी आई एम जस्ट यूजिंग दिस एरे, तो ये मेरा एरे। ओके सपोज दिस इज माय एरे, इसके अंदर वो सर्च करेगा। ओके इसके अंदर क्या करेगा, सर्च करेगा। ओके किसे सर्च करेगा, सो वी हैव टू पास द रो नंबर। कितनी रो नंबर मुझे चाहिए केजी एजेंसीज के लिए, रो नंबर कितनी होगी केजी एजेंसीज की। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक्चुअली। ओके ठीक है आप टोटल ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है हम एरे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो, ये टोटल आ रहा है इंडेक्स के अंदर। आई एम यूजिंग द टोटल सिलेक्ट एरे, देन यू हैव टू पास द रो नंबर। ओके तो इस एरे के अंदर रो नंबर कितना है, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3 एंड इट्स अ 4। बिकॉज मुझे केजे एजेंसीज की वैल्यू शो करनी ना, तो उसका रो नंबर कितना है, 4 है। देखो 4 मैंने डाल दिया, खत्म। ओके प्रेस द एंटर, आई गो टू 64। बट ये किसके लिए शो होगा, सिर्फ केजी एजेंसी के लिए शो होगा। ओके ठीक है, बट जहाँ पे हमने 4 लिखा है वहां पे हम मैच यूज कर सकते हैं। ओके मैच मतलब वो केजी एजेंसी को ढूंढेगा कि उसका रो नंबर कितना है। ओके सीधे अब जहाँ पे 4 लिखा है वहां पे आई एम यूजिंग द मैच फॉर्मूला। मैच मतलब इट यूज द इंडेक्स, जहाँ पे मैच होगा उसका इंडेक्स देगा ये। ओके सो आई एम यूजिंग द मैच फॉर्मूला सीधे। ओके यहाँ पे मैच फॉर्मूला ओपन होगा। सो इन द मैच फॉर्मूला फर्स्ट यू हैव टू पास द लुकअप वैल्यू। इस मैच फॉर्मूला की लुकअप वैल्यू क्या होगी, केजे, इसका रो नंबर चाहिए ना। ओके इसका रो नंबर चाहिए। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट इज द लुकअप वैल्यू। तो केजे कहाँ पे ढूंढेगा ये, इसके अंदर, ये उसका लुकअप एरे होगा। ओके अगेन कॉमा, देन एग्जैक्ट मैच, राइट द जीरो देयर, क्लोज द पैरेंथेसिस, और लास्ट में इंडेक्स का पैरेंथेसिस होगा। विल गेट द सेम आंसर दैट इज 64 समथिंग। अब देखो केजी एजेंसी की जगह यदि मैं एलेक्स एजेंसी भी लिखता हूँ यहाँ पे, सी आई एम यूजिंग द एलेक्स एजेंसी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होगी। तो इंडेक्स विद द मैच भी कर सकते हैं ना। बट ठीक है आपको रिवर्स लुकअप विद द चूज अच्छा लग रहा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, यूज द इंडेक्स विद द मैच। बट ये इंडेक्स विद मैच क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल दोनों भी जाएगा। ठीक है दोनों भी जा सकता है, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, ऊपर सर्च करो, इधर सर्च करो या इधर सर्च करो। ओके ट्राई दीजिए, इसे ट्राई कर सकते हैं। सी एक बार क्या करना है, सेलेक्ट द इंडेक्स, सेलेक्ट द इंडेक्स फॉर्मूला, देन यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज। पहले क्या शो हो रहा है आपको, एरे। तो एरे के अंदर क्या सिलेक्ट करना है, टोटल कॉलम सिलेक्ट करना है। ये आपका एरे है, यू हैव टू सिलेक्ट द टोटल कॉलम। ओके कॉमा, कॉमा के बाद आपको क्या देना है, रो नंबर। तो रो नंबर कितनी है, टोटल टोटल कॉलम के अंदर कितना 64,000 है केजी। रो नंबर इज अ 4, डायरेक्टली 4 लिख सकते हो कंप्लीट। बट उस 4 के लिए आपको क्या लिखना है, मैच फॉर्मूला। एंड मैच फॉर्मूला यस यू कैन सी हियर।
एक बार सी डू विथ मी. Okay, see that. Okay, okay, try with me now. Okay, I'm using the equal to. Okay, write the equal to. Then write index formula. इसको तो index formula select करना है. Yes, select the index form here. Parenthesis open now. Correct. In the parenthesis, select the total column. पहले लुकअप एरे एक्चुअली एरे एरे मतलब इसके अंदर मुझे क्या करना है फोर्थ रो पे जो है ना वो शो करना है. ओके फोर्थ रो मतलब इट्स अ एक के जी एजेंसी. ओके बट ठीक है उसके लिए मैच यूज करने वाला. ओके कॉमा. ओके इसके बाद आपको क्या लिखना है फोर लिखना है. फोर मतलब उस जो आपने एरे स्प्लिट किया है उसके अंदर जो फोर नंबर पे जो है वो शो कर दे. ओके बट ठीक है हमारा कुछ भी हो सकता है. फोर्थ रो हो सकती है, सिक्स की भी हो सकती है, सेवन की भी हो सकती है. जहाँ पे हमने फोर लिखा है वहां पे आपको मैच लिखना है. नाउ राइट द मैच देयर. ओके कॉमा मैच. ओके मैच अब मैच क्या करेगा जो लुकअप वैल्यू उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे देगा. सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू कौन सी है आपकी ये वाली अलेक्सिस यहाँ पे जो भी होगा ये आपकी लुकअप वैल्यू है. उसका लुकअप एरे क्या होता है ये कहाँ पे ढूंढेगा इसके अंदर ढूंढेगा कि ये अलेक्सिस किस किस रो नंबर पे आ रहा है. ओके इसके अंदर ढूंढेगा. ओके ये भी एक लुकअप फॉर्मूला है. ओके मैच तो इस यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट मैच डालना पड़ेगा एंड देन क्लोज मैच फॉर्मूला. Okay, in the match we have the three parameter. First is the lookup value, second is the lookup array, and third is the exact match. बस इतना ही. ओके आपका क्लोज होगा मैच फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट लास्ट में आपको क्लोज करना है आपका इंडेक्स फॉर्मूला. ट्राई दिस. ओके दोनों में से कौन सी भी टेक्निक यूज कर सकते हैं. इफ यू गॉट द क्वेश्चन जस्ट हाउ टू अप्लाई द रिवर्स लुकअप then you can go by using index with the match or go by using the choose formula. Okay, write the index. In the index first you have to pass the array, right? But pass the total column. उस टोटल कॉलम के अंदर कॉमा रो नंबर. ओके कॉलम में पास करने की जरूरत नहीं है. ओके एरे उसके तो उसके अंदर रो नंबर ढूंढ देगा. ओके उस रो नंबर के लिए हम मैच यूज कर सकते हैं. उस मैच का यूज करके हम किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी शो कर सकते हैं. ओके दैट्स आवर कंसेप्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ द मैच फॉर्मूला. इट गिव्स द इंडेक्स. वो इंडेक्स वो नंबर देता है. उस एरे के अंदर आपकी वैल्यूज सर्च करके वो नंबर देगा. इट गिव्स द इंडेक्स. वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर जो भी आपका इंडेक्स हो. ओके डन. Okay again see once. Okay see that how to use the index with the match. Okay so I'm going to select the index formula again. Okay in the index formula first you have to pass the array. ओके तो सिंपल एरे एंड रो नंबर इतने पास करने वाले. एरे एंड द रो नंबर ये मेरा एरे. इसके अंदर रो नंबर क्या होगा फोर होगा. फोर मतलब वन टू थ्री एंड फोर. फोर मतलब एक केजी एजेंसी के लिए क्या होगा फोर नंबर. तो बस इतना ही पास करना पड़ता है. इतना ही फॉर्मूला सपोज. वैसे रो नंबर कॉलम नंबर दोनों के साथ भी जा सकते हैं बट जरूरत नहीं. ओके
सो बट 4 नंबर की जगह मुझे क्या करना है, यू हैव टू पास द मैच फॉर्मूला। ओके, क्योंकि 4 नंबर मतलब फिक्स होगा 4 के लिए, मतलब केजी एजेंसी के। ओके, बट हमें क्या करना है, सपोज हमारी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, कंपनी नेम मुझे अलग सर्च करनी है, तो यस वी कैन यूज द मैच नाउ। तो ठीक है, तो रो नंबर के लिए हमें मैच फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो अब क्या करेगा, लुकअप वैल्यू, तो यह इस सेल के अंदर जो भी आएगा उसकी मुझे रो नंबर चाहिए। ओके, सेलेक्ट द कंपनी नेम दैट इज एलेक्स एजेंसी, देन कॉमा लुकअप एरे। अब इस इसका लुकअप एरे कहाँ पे है? ओके, इसका लुकअप एरे यहाँ से लेके यहाँ तक, रिमेंबर इन दोनों आपने टोटल से सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी कंपनी नेम से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एक टोटल से सिलेक्ट कर रहे हो, एक अम्बे एजेंट सिलेक्ट कर रहे हो, ओके डोंट यूज दिस लुकअप एरे कॉमा, देन यू हैव द एग्जैक्ट मैच 0, देन क्लोज पैरेंथेसिस, आपका मैच फार्मूला कंप्लीट। बट हाँ, हमारा इंडेक्स फार्मूला क्लोज नहीं हुआ। ओके, देन क्लोज योर इंडेक्स फार्मूला। Done. Okay, it's a done. Then you can press the enter and you will get the particular values. If it's Alex agency, I got the 58. So that means it, yeah, it works in the reverse. Okay, ये reverse काम कर रहा है. Okay, ठीक है. After that, okay, so after that we will see after the reverse lookup. Yes, come to sheet 10. That is a pivot table concept. Okay, sheet 10. Come to the pivot table concept. Yeah, it is one of the important concept. What is a pivot table? Yes. Summarize. Give a summary. हाँ, that means pivot table is used to summarize and analyze your data. ओके, आप आपका डेटा पूरा कितना भी हो, उसे इजीली क्या कर सकते हो, पिवट टेबल से समराइज कर सकते हो। ओके, वो खुद करके देगा सब कुछ। हाँ, बिफोर दैट यू हैव टू डू सम क्लीनिंग, उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, नाउ सी दैट, सो हाउ टू क्रिएट द पिवट टेबल, सपोज ओके ये मेरा टेबल है, या इज इट टेबल? ओके, हाउ? Format red. ओके, इसका मतलब देखो, मैं यहाँ इस टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर एक टैब मिल रही है, टेबल डिजाइन। इसका मतलब ये डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। हाउ टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू टेबल फॉर्मेट? Select table and table. ओके, इन द होम टैब यू हैव द फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन। ओके, इसका यूज करके आप किसी भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। रिमेंबर, क्योंकि एक्सेल के लिए टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज दिस ऑप्शन, फॉर्मेट एज अ टेबल, या यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस टी। ओके, यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस टी आल्सो। ओके, ठीक है, तो ठीक है, आपका टेबल ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, तो आपको कहीं पे भी क्लिक करना है टेबल के अंदर। ओके, सो मुझे इसके लिए पिवट टेबल इंसर्ट करना है, सो सिलेक्ट इंसर्ट, in the insert, yes, we have the pivot table concept, click on the pivot. Sir, Yeah, old table. कहाँ? Yes, sheet 10, come to the sheet 10. नहीं नहीं, एक्चुअल टेबल फॉर्मेट मध्ये. ओके, काय प्रॉब्लेम, सीधा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो टेबल फॉर्मेट में ही है। ओके, रिमेंबर, सपोज मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 1 2 लाइक दिस। ओके, तो ये डेटा आपका टेबल फॉर्मेट है, इतना डेटा नहीं, ये टेबल फॉर्मेट नहीं है। ओके, आप इसे बॉर्डर भी देते हो तो तभी भी ये टेबल फॉर्मेट नहीं है। तो आपको आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा, देन गो टू द होम, देन यू हैव द फॉर्मेट एज अ टेबल, एंड यहाँ से आपको एक टेबल फॉर्मेट लेके यहाँ पे क्रिएट करना है। अब ये टेबल फॉर्मेट है। ओके, रिमेंबर, ये टेबल फॉर्मेट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक टैब मिलेगी टेबल डिजाइन। ओके, उस टेबल का नाम है टेबल 3। दिस इज अ टेबल फॉर्मेट फॉर द एक्सेल, अदरवाइज एक्सेल के लिए वो टेबल फॉर्मेट नहीं होता है। ओके, कोई भी डेटा डायरेक्टली टेबल फॉर्मेट एक्सेल के लिए नहीं होता है। ओके, तो इसे हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तो यू कैन यूज द क्लियर ऑल। जस्ट ओके, ऑलरेडी ये टेबल फॉर्मेट ही है। ओके, तो यस वी हैव टू इंसर्ट द टेबल, मुझे इसके लिए क्या करना है, पिवट टेबल इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है। अब देखो, एक्चुअली पिवट टेबल है क्या, मतलब यहाँ पे डेटा क्या है, तो वी हैव द कंपनी नेम्स एंड वी हैव द डेट वाइज ट्रांजेक्शंस। ओके, तो इसका मतलब होगा जैसे कि यहाँ पे बीजीएस कंपनी है, बीजीएस बीजीएस बहुत बार रिपीटेड हो सकती है। ओके, क्योंकि डेट वाइज हमारे पास क्या है, उसके ट्रांजेक्शन अवेलेबल। ओके, तो ठीक है, सो क्लिक ऑन द टेबल, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, देन गो टू द इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन द पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक करना है आपको। ओके, विल गेट दिस ऑप्शन,
कि ओके टेबल वन डायरेक्टली ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है आपका। ओके यदि टेबल फॉर्मेट नहीं है तो आपको मैन्युअली यहाँ पे ऐसे ओके ड्रैग करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट ठीक है इट्स ऑलरेडी टेबल, तो इट्स अ टेबल वन। हाँ आपको पिवट टेबल कहाँ पे चाहिए, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्ट है। ओके ठीक है मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो क्लिक select the new worksheet and click on the OK. See, I got the pivot table, but it's an empty pivot table. Okay, try this one. बाद में देखते हैं। Okay, so come to the sheet 10. sheet 10 पे आना है आपको and you have to insert the pivot table. pivot table के अंदर कहीं भी क्लिक कर सकते हो, then go to the insert. Okay, देखो ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट है, इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके कहीं भी क्लिक कर सकते हो। सो विल गेट द एम्प्टी पिवट टेबल, ये आपका एम्प्टी पिवट टेबल। ओके ओके तो इस पिवट टेबल के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको पिवट फील्ड मिल जाएगी, राइट। ऑन द राइट साइड विल गेट द अलग अलग विल गेट द वेरियस फील्ड्स। सो फ्रॉम दिस फील्ड यू कैन सेलेक्ट इट। तो मुझे चाहिए पार्टी नेम, आपको पार्टी नेम पे क्लिक करना है। सी देयर आई गॉट द पार्टी नेम हियर। ओके आई गॉट द पार्टी नेम। ओके पार्टी नेम मतलब अब मुझे क्या मिल रहा है एक्चुअली यहाँ पे मेरे डेटा के अंदर जो पार्टी नेम नाम का कॉलम है उसके अंदर जो यूनिक वैल्यूज है, सभी यूनिक वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही है। नॉर्मल है क्या वो वैल्यू रिपीटेड वहाँ पे ना, तो वी आर जस्ट गेटिंग यूनिक वैल्यूज। एंड नाउ क्लिक ऑन द टोटल, क्लिक ऑन द टोटल, चेक इट। Okay, insert the pivot table, then just click on the party name and the total. Okay, yeah, it's your pivot table. वापिस वो मेन शीट में भेजा हम्म, जो डेटा में फिट वापस ये मेन शीट है आपकी। हाँ मेन शीट अलग शीट में ना एक्चुअली, वही पे एक शीट आपकी इंसर्ट होगी। ओके सो नाउ आई थिंक यू गॉट द पिवट टेबल, राइट। इसे कहते हैं पिवट टेबल। उसके अंदर आपको जो फील्ड ऐड करनी वो ऐड कर सकते। अब हुआ क्या है देखो, जो सपोज यहाँ पे जो अम्बे एजेंसी कंपनी है, तो उसके लिए जो टोटल टोटल के अंदर जो भी जितने भी सेल्स थे सभी को ऑटोमेटिकली सम होके यहाँ पे शो हो रही है। बाय डिफॉल्ट सम होती है, बट यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू सेटिंग होती है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कोई अलग भी ले सकते हैं। वी हैव द डिफरेंट ओके डिफरेंट फॉर्मूले, बट बाय डिफॉल्ट इट्स सम। मुझे एवरेज चाहिए तो काउंट मिल सकता है, एवरेज चाहिए तो एवरेज भी मिलेगा। ओके सो दिस इज व्हाट्स अ पिवट टेबल। तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली समराइज हो चुका है। ओके तो इसमें हम डेट कॉलम तो डेट कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। ओके डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब देखो ठीक है आपको क्या मिल रहा है, अम्बे एजेंसी मिली, उसके लिए कितनी, हर एक कंपनी के लिए कितनी टोटल हो रही है, और आपको ग्रैंड टोटल भी मिल रही है। इट्स योर ग्रैंड टोटल। अब सपोज इसे आपको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके जो शो हो रहा है ना ये तो एक्चुअल वैल्यू है, बट मुझे परसेंटेज फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ओके फर्स्ट सेल पे क्लिक करके भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, शो वैल्यूज एज अ परसेंटेज ग्रैंड टोटल। ओके मतलब ये वैल्यू जो है ना मुझे क्या शो करनी है, जो अपना ग्रैंड टोटल है ना उसके परसेंटेज के फॉर्मेट में शो करनी है। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो परसेंटेज ग्रैंड टोटल सीधा। सपोज आपकी सबसे बड़ी वैल्यू 100% है, तो सबसे अम्बे एजेंसी इट कंट्रीब्यूट 30% सेल्स। ओके सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, ओके आई थिंक इट्स अम्बे एजेंसी। सेकंड इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज। ओके तो उसे आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके चेक दिस। ओके ट्राई दिस वन। ओके तो ये आपका था सम ऑफ टोटल। तो फर्स्ट सेल पे क्लिक कर सकते हैं, देन क्लिक राइट क्लिक देयर शो वैल्यू एज। देखो परसेंटेज परसेंटेज किसका चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, कॉलम टोटल, रो टोटल, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे। ओके बट ठीक है जो ग्रैंड टोटल होगा उसके हिसाब से मुझे परसेंटेज चाहिए, तो यू हैव टू सिलेक्ट द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके so yes you can say that Amway agencies that is a has highest contribution।
ओके, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, एम्बे एजेंसी, देन ऑन द सेकंड इट्स अ बीजीएस एंटरप्राइज। ओके ओके, या ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर, शो वैल्यू एज। ओके, जैसे कि यहाँ पे समराइज मिलता है फंक्शन, तो वी हैव द ऑप्शन शो वैल्यू एज, सो विल गेट द परसेंटेज ग्रैंड टोटल, यहाँ पे वो सिंबल मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी वही ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करके भी मिलेगा, या शो वैल्यू एज, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल, विल गेट द डिफरेंट ऑप्शंस। ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सम होती है ना, तो नॉर्मली यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ता है, वी हैव द वैल्यू फील्ड सेटिंग, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फंक्शन सम होता है, तो यू कैन चेंज द फंक्शन आल्सो हियर, also you can change the show value as, here we'll get the percentage in the show value as। Okay, see where is the option sum of total, here we have the value field setting, and here we have the value show value as। सर ओके करने पे चेंज नहीं हो रहा वैल्यू। नहीं, ऑलरेडी आप परसेंटेज में ना, मेरे तो परसेंटेज में ना। तो अगर हमें दोबारा सम ऑफ टोटल देखना हुआ तो ओके, सम ऑफ टोटल फिर यहाँ पे क्लिक करना आपने, नहीं वैल्यू चेंज हुई है एक्चुअली। अगर मैं वो सीरियल नंबर सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट सम हो जाता है कि उसका सीरियल नंबर जो ये है ना वैल्यू फील्ड, फील्ड वाली सीधा ये वाला, ये ऊपर ऊपर करके हाँ नहीं सीरियल नंबर मतलब सीरियल नंबर का भी सम हो जाएगा। ओके, अगर मैं मतलब सीरियल नंबर का सम मतलब क्या होगा, ये अम्बे एजेंसी के जो सीरियल नंबर है ना, 1 9 होगा, 7 होगा, जो सीरियल नंबर है उनकी सम होती जा रही है। ओके, अगर मैं सम ऑफ टोटल निकालता हूँ उसे सीरियल नंबर सिलेक्ट करता हूँ आप निकाल सकते हैं, आपको ये चाहिए तो वो सम सीरियल नंबर शो होगा, बट ये सीरियल नंबर की सम है। अच्छा सीरियल मतलब 1 3 जो है ना उसकी सम होगी, जहाँ जहाँ पे अम्बे एजेंसी है ना आपके डेटा के अंदर, सपोज अम्बे एजेंसी यहाँ पे 1 है सीरियल नंबर, अब अम्बे एजेंसी का यहाँ पे 4 है, मतलब 1 प्लस 4 प्लस वो एडिशन होता चला जाएगा, सीरियल नंबर ऐड होता चला जाएगा। ओके, हाँ जो कॉलम ऐड करना है वो कॉलम ऐड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सम है, बट काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, तो आप उसे चेंजेस भी कर सकते हो। हाँ परसेंटेज में शो करना है तो उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वी हैव द राइट क्लिक ऑप्शन द शो वैल्यू एज। ओके, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, राइट क्लिक करके भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अदर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, वैल्यू बिल्ड सेटिंग, ओके शो वैल्यू एज, ओके दोनों जगह पे ये ऑप्शन मिलेगा। चलिए, वहाँ पे फिल्टर्स कहाँ पे, यहाँ पे ना, ओके ये फिल्टर, एक्चुअली ये फिल्टर्स होते हैं ना नॉर्मली, इसके लिए होता है एक्चुअली, बट ठीक है इसकी जरूरत नहीं है, फिल्टर में कुछ नहीं चाहिए। कॉलम्स रोज, यदि मल्टीपल फिल्टर है तो आपके यहाँ पे फिल्टर शो होगा। ओके, एंड यू नो द स्लाइसर एंड द टाइमलाइन कांसेप्ट, हाँ ओके वो मतलब इट्स अल्टरनेटिव टू द फिल्टर। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे फिल्टर होता है राइट, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ अम्बे एजेंसी का डेटा चेक करना है, तो सिर्फ अम्बे एजेंसी सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, एंड वी कैन प्रेस द ओके, विल गेट द अम्बे एजेंसी डेटा। ओके ओके, नहीं चाहिए तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लियर फिल्टर को क्लियर करना पड़ता है। ओके, दिस इज अ फिल्टर, ये फिल्टर ही है, बट ये थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव द स्लाइसर कंसेप्ट, वी हैव द टाइमलाइन, दोनों भी है, बट टाइमलाइन के लिए डेट कॉलम होना चाहिए, टाइमलाइन सिर्फ पिवट टेबल के लिए इंसर्ट होगा, स्लाइसर आप किसी भी टेबल के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। चेक है, तो ये जो पिवट टेबल है, तो यहाँ पे एक ऊपर एक टैब मिलेगी, आप पिवट टेबल एनालाइज, पिवट टेबल की स्पेशल टैब होती है पिवट टेबल एनालाइज, एंड वी हैव द इंसर्ट स्लाइसर, वी हैव द इंसर्ट टाइमलाइन। ओके, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट द स्लाइसर, मुझे स्लाइसर चाहिए पार्टी नेम के लिए। ओके यस, जिस स्लाइसर चाहिए पार्टी नेम के लिए, तो ठीक है, मुझे एक टाइमलाइन भी चाहिए, तो एक टाइमलाइन डेट कॉलम तो ऑलरेडी है। ओके, क्लिक द डेट एंड आई वांट टाइमलाइन, देखो स्लाइसर भी मिलेगा, टाइमलाइन भी मिलेगा, पिवट टेबल के लिए चेक करो, आपको उस पिवट टेबल के लिए स्लाइसर इंसर्ट करना है, स्लाइसर पार्टी नेम के लिए इंसर्ट करो, और एक टाइमलाइन भी इंसर्ट करो। ओके, डेट कॉलम यहाँ पे नहीं है, मेन डेटा के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ डेट वाइज आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मुझे सिर्फ दिसंबर का चेक करना है, ओके या ईयर वाइज चेक करना है, 2019, ओके ईयर वाइज, एक ही ईयर एक्चुअली, बट ठीक है मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं, किस मंथ में क्या हुई सेल्स। ओके, कैसे जुलाई वाइज, ओके बहुत ओके, कैसे भी चेक कर सकते हैं वाइजिंग टाइमलाइन। सो या इंसर्ट स्लाइसर एंड द टाइमलाइन,
Okay, उस जो पिवट टेबल आपका क्रिएट हुआ है ना, उसके लिए आपको स्लाइसर और टाइमलाइन इंसर्ट करना है। ओके, आई थिंक विल गेट द ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है? पिवट टेबल एनालाइज। ओके, वी हैव द टैब। ओके, बट देखो पिवट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद वो टैब शो होगी ऊपर, अदरवाइज बाहर टैब नहीं शो होती है। ओके, बाहर टैब नहीं शो होगी। पिवट टेबल जो टेबल है आपका पिवट टेबल, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये पिवट टेबल एनालाइज टैब शो होगी। यदि आप बाहर हो तो वो टैब शो नहीं होगी। ओके, रिमेंबर। Okay, this is a slicer and the timeline concept. इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन, दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्लाइसर किसी भी, ओके, इसका एडवांटेज क्या होता है कि स्लाइसर का मतलब ये देखो, हम अब जैसे जिसे चेक करना है तो उसे पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी सिलेक्ट भी है। ओके, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड टाइमलाइन मतलब वी कैन गो ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, जैसे जाना है वैसे आप चेक कर सकते हो आपका रेट। लास्ट मंथ में कितना था, लास्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई है, ओके, किसके लिए क्या हुआ है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। एंड यदि आपका मेन डेटा चेंज हो रहा है तो आपका पिवट टेबल का भी चेंज होगा। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपने चेंज कर दी, तो ये चेंजेस यहाँ पे भी होंगे। यस, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, वी हैव द राइट क्लिक करके एक रिफ्रेश ऑप्शन होता है। ओके, तो रिफ्रेश करके आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। रिमेंबर। Okay, done. Okay, ठीक है, so now come to sheet 10. Okay, 11, come to sheet 11. Okay, yeah, come to the another sheet, that is sheet 11. Okay, in the sheet 11 we are going to see the drop down list. Okay, how to create the drop down list? डेटा वैलिडेशन। ओके, आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आपको डेटा वैलिडेशन कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, तो मुझे सपोज एक कॉलम है। ओके, इस कॉलम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे कॉलम है, आइटम है। ओके, तो मुझे उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, मतलब उसमें से मल्टी से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, सो सी हाउ टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, सिलेक्ट दिस वन। ओके, जहाँ पे चाहिए वो सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन गो टू द डेटा। In the data we have the concept data validation. Okay, in the data tools, yes, we have the data validation. Data will get the data validation window. Okay, तो मुझे डेटा वैलिडेशन क्रिएट करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट द लिस्ट हियर, क्योंकि आपकी एक लिस्ट है। लिस्ट मतलब मल्टीपल वैल्यूज। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट द लिस्ट। ओके, बट उस लिस्ट के अंदर वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, ये सोर्स आपका ये है। ओके, या मैन्युअली भी डाल सकते हैं वन बाय वन, बट ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी देयर, यू कैन सिलेक्ट दिस वन। ओके, एंड देन जस्ट प्रेस द ओके। सी यस, आई गॉट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो सी दिस, यस, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर। ओके, या दिस इज द वे टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, ट्राई दिस वन। जस्ट सिलेक्ट द सेल जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। गो टू द डेटा, डेटा वैलिडेशन। इन द डेटा वैलिडेशन यू हैव टू सिलेक्ट द लिस्ट एंड योर सोर्स। प्रेस ओके, डन। इट्स वेरी सिंपल। ओके, डन। देखो सपोज यहाँ पे ओके, कहीं पे भी आपको क्लिक करना है जहाँ पे आपको लिस्ट ये ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। ओके, सपोज मैंने मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, सो इन द डेटा, गो टू द डेटा। इन द डेटा वी हैव द डेटा वैलिडेशन।
देखो ऐसे आपको एक ऐसे सिंबल मिलेगा इन द डेटा टूल्स, दिस इज योर डेटा वैलिडेशन। ओके, वहाँ पे क्लिक करना है, विल गेट दिस विंडो। ओके, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू सिलेक्ट द लिस्ट, कि हमें लिस्ट सेलेक्ट करनी है, सिलेक्ट द लिस्ट। ओके, सिलेक्ट लिस्ट, जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है आपका सोर्स, एंड देन जस्ट प्रेस द ओके। ओके, सी यस आई गॉट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हाँ, उसके बाद ड्रैग कर सकते हैं आपको जहाँ तक चाहिए। ओके, जहाँ तक चाहिए उसे आप ड्रैग कर सकते हैं। बट सपोज मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, पीपी, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड होगा। ओके, सब देखो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे ये, पर यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी लिस्ट चेंजेबल भी हो सकती है, उसके लिए क्या करना, एक ऑप्शन है, ये जो आपका सोर्स है इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, एंड देन सिलेक्ट द टेबल। जहाँ पे सोर्स है ना, टेबल सिलेक्ट करो। उस टेबल फॉर्मेट का एडवांटेज क्या होता है कि यदि उसके अंदर कुछ ऐड हो जाता है तो उस टेबल के अंदर ही ऐड हो जाता है, दैट्स द एडवांटेज। ओके, गॉट दिस, क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को टेबल मतलब टेबल। ओके, सो इट्स अ फॉर्मेट एज अ टेबल। ओके, इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, एंड देन क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, सोर्स में आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली बाद में चेंजेस हो जाएगा, दैट्स द एडवांटेज। ओके, यू कैन ट्राई इट लेटर। ठीक है, आफ्टर दैट कम टू शीट 12। Okay, it's a subtotal. Okay, so what is the use of the subtotal formula? Yes, subtotal again it is one of the important formula, subtotal. फिल्टर लावतो ना, हाँ, तर टोटल शो करायसाठी पर्टिक्युलर सिलेक्ट राइट। ओके, तो नॉर्मली होता क्या, जब आपने फिल्टर लगाया, यहाँ पे फिल्टर है, देखो अम्बे एजेंसी और अलग अलग कंपनी है। यदि यदि मुझे सिर्फ ठीक है, मुझे इस सब की समेशन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ठीक है, समेशन मिल जाएगी। यस, वी कैन यूज द सम फॉर्मूला हियर। ओके, वी कैन यूज द सम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यू कैन सेलेक्ट दिस वन, ऑल वैल्यूज क्लोज द पैरेंथेसिस, विल गेट द समेशन। ओके, सब मिल जाएगी। बट सपोज यू आर यूजिंग द फिल्टर, सो मुझे सिर्फ अम्बे एजेंसी चेक करनी है, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि आपने रेंज जो सिलेक्ट की थी वही शो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सम वर्क नहीं होगा। यदि आपका आपका डेटा जितना डेटा शो हो रहा है उसकी सम चाहिए, देन यूज द सब टोटल। ओके, देन यूज द सब टोटल, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। सी हाउ टू यूज द सब टोटल। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ द सब टोटल, जितना डेटा शो हो रहा है उसकी समेशन मुझे चाहिए। ओके, सो प्राइस द इक्वल टू, देन सेलेक्ट द सब टोटल। ओके, योर पैरेंथेसिस ओपन, इन द पैरेंथेसिस ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको, बट वी हैव टू सिलेक्ट द 9 क्योंकि इट्स फॉर द सम, जो सम चाहिए, तो सिलेक्ट द 9 कॉमा, देन सिलेक्ट दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस को आपको सिलेक्ट करना है, 9 कॉमा दिस रेफरेंस, 9 फॉर द सम, बस इतना ही। प्रेस द एंटर, yes I got the answer same। and if you are in the filter here, suppose I'm using the filter, and see the value भी change हुई 151। okay, suppose you are using the add कर रहे हो तो वैल्यू भी चेंज होगी, जितना डेटा शो होगा उतनी आपको समेशन मिलेगी, दैट्स द सब। फिल्टर नहीं चाहिए तो उसे आप क्लियर भी कर सकते हो। चेक दिस। ओके, सब टोटल सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द 9 कॉमा आपकी रेंज, बस इतना, 9 फॉर द सम। ओके, सब टोटल सम के लिए चाहिए, एवरेज के लिए चाहिए, काउंट के लिए चाहिए, बट वी वांट फॉर द समेशन। सिलेक्ट द 9 कॉमा रेफरेंस मतलब योर रेंज, रेंज मतलब यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलम नंबर। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको सिलेक्ट करना सब टोटल सिलेक्ट करेगा। है। हाँ, फॉर्मूला सब टोटल है, नॉट सम, फॉर्मूला सब टोटल फॉर्मूला है। जितना आपका डेटा शो हो रहा है उतनी समेशन ही देगा। 9 सॉरी 9 के रेफर करता है। Sum. 9 is for the sum. Okay.
एवरेज है, कुछ भी कर सकते हो। Okay. जितना सेलेक्ट होगा उसका एवरेज शो होगा, जितना सेलेक्ट होगा उसका काउंट शो होगा। Okay? तो 9 इज फॉर द सम, वो आपको वापस शो भी होगा, चेक करो। एंड देन यू हैव टू सेट द रेफरेंस, रेफरेंस मतलब योर सम रेंज। ओके डन। ओके ठीक है। After that, okay, we have to see the 2 or 3 things more. Okay, I think done. Subtotal. Okay. Okay. Now come to sheet 13. Okay, sheet 13 means it's a flash fill. Flash fill पता है आपको? Yes, flash fill. बहुत सारी चीजें आप फ्लैश फिल से कर सकते हो। ओके, हमने फर्स्ट सेशन में देखा था फ्लैश फिल कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस पैटर्न मैच करेगा। ओके, देखो एग्जांपल, मेरे पास एक जीएसटी कॉलम है, इस जीएसटी कॉलम के अंदर जीएसटी नंबर है, इसके अंदर एक देखो डीएफटीजी है, फर्स्ट कुछ नंबर है, उसके बाद क्या है डीएफटीजी, उसके बाद क्या है 67 है। ओके, तो मुझे क्या चाहिए उसमें से, वो सिर्फ टेक्स्ट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, टेक्स्ट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, वैसे तो मैनुअल जाना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट्स है वो वैल्यू वेरी भी हो सकती है। ओके, डायरेक्टली परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। बट नाउ सी देयर, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द डीएफटीजी, तो वो चाहिए मुझे यहाँ पे राइट। एक आपको लिखना पड़ेगा एक पैटर्न। ओके, बाहर क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड जस्ट क्लिक द कंट्रोल प्लस ई, तो आपको पैटर्न सब कुछ मैच होगा। ई, ओके, इट्स अ फ्लैश फिल। आपने जो लिखा है ना पैटर्न, वो आपको नजदीक ढूंढेगा, वो सिर्फ नजदीक चाहिए। हाँ? ऊपर का DFG हाँ, जो भी लिखा है डीएफटीजी, एक पैटर्न तो देना पड़ेगा ना, एक पैटर्न आपको देना है। फर्स्ट ट्राई द डीएफटीजी, बाहर क्लिक करो एक बार, फिर से वहां पे क्लिक करो, देन यूज द कंट्रोल प्लस ई। ओके, ओके, फ्लैश में बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं। कंट्रोल प्लस ई। ओके, डीएफटीजी लिखने के बाद बाहर क्लिक करके एक बार फिर से क्लिक करना है। नॉर्मली क्या होता है, हम उस सेल के अंदर होते हैं, इट इज इन द एडिट मोड, सेल वो एडिट मोड में होती है, इसलिए ओके, बाहर क्लिक करके अब फिर से क्लिक करना है, इट्स रेडी मोड में। अब देखो, सिर्फ इसका ये भी यूज नहीं है, जैसे कुछ भी कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक नेम कॉलम है, तो उसमें से मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम क्या करने, एक्सट्रैक्ट करना, तो कैसे कर सकते हैं आप? ओके, फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं, अदर कोई ऑप्शन है एक्सेल के अंदर? टेक्स्ट टू कॉलम, ओके, एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्लैश फिल से इजीली होगा। सो फर्स्ट राइट जस्ट अनिल, बस उसका आप अनिल लिखना है, बाहर क्लिक कर दो, एक बार उस पर क्लिक कर दो एंड जस्ट प्रेस द कंट्रोल प्लस ई, सो विल गेट ऑल द फर्स्ट नेम, ऑल द लास्ट नेम, ऑल द मिडल नेम। ओके, कुछ भी मिलेगा आपको। मोस्टली इट इज गुड फॉर द टेक्स्ट डेटा, फ्लैश फिल ये टेक्स्ट डेटा पे अच्छा काम करेगा, न्यूमेरिकल पे में भी विल गेट द रॉन्ग आंसर। ओके, हाँ, बट यहाँ पे वर्क नहीं होगा। मैंने सपोज यहाँ पे अनिल लिख दिया, यहाँ पे वर्क नहीं होगा क्योंकि इसमें ब्लैंक रो आ रही है, तो डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे बट कंटिन्यूस सब कुछ, तो यहाँ पे वो मैच नहीं कर सकता। ओके, रिमेम्बर, बहुत सारे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, मैंने मैंने मिस्टर लिख दिया, चेक इट, मैंने मिस्टर लिख दिया, उसके बाद मैंने अनिल लिख दिया, मिस्टर डॉट अनिल, और मैं से अब कंट्रोल प्लस ई कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिस्टर मिस्टर हो जाएगा। कैशफिल से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। ओके, चेक दिस। Okay. Okay. Last we'll see. Come to the sheet 14. 1 4. Come to the sheet 1 4.
Okay. You know how to use the sum? Okay, I think you know that how to use the sum formula. Okay, these are some important formulas. Sum, समीप पता है, समीप कब यूज करना है, कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगानी है. ओके, ओके, यू कैन ट्राई. काउंट इफ, कंडीशन लगा दो काउंट कर, हाँ कंडीशन लगा के काउंट, जैसे कि समी पे सम इफ्स भी है. ओके, तो काउंट इफ भी, थोड़ा सा काउंट इफ देख लेते हैं इसमें. कॉन्कैटिनेट पता है, पांच इंटीजर्स को दो तीन कॉलम्स आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, कॉन्कैटिनेट. ट्रिम, टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस. क्लीन, टू रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स. एक बार बता सकते हैं सर आप सी सी विल सी, उसमें से हम देखने वाले काउंटिंग. ओके, हाँ कॉन्कैटिनेट विल सी दैट. ओके, ठीक है. तो नाउ कम टू द काउंटिंग, यहाँ पे आ जाओ कहीं पे. ओके, इट्स अ काउंटिंग. ओके, यहाँ पे काउंटिंग मिलेगा. ओके, सीधे. ओके, सो सी हाउ टू यूज द काउंट. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. ओके, सी जस्ट सी फर्स्ट. सो आई एम यूजिंग द इक्वल टू हियर एंड आई एम यूजिंग द काउंट इफ. काउंट इफ्स भी है, मतलब कंडीशन देके मुझे काउंट करना है. सम इफ मतलब कंडीशन देके सम करनी है. तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज. ओके, तो सपोज ये मेरी रेंज है, आइटम्स कुछ. ओके, दैट इज माय रेंज. कॉम, क्राइटेरिया क्या है मेरा, दैट इज माय क्राइटेरिया इज द गैस. जहाँ पे गैस होगा उसका काउंट चाहिए मुझे. दैट्स द क्राइटेरिया. रेंज, क्राइटेरिया, दो ही पैरामीटर, एक तो रेंज एंड सेकंड इज क्राइटेरिया. रेंज मतलब आपने जो रेंज सिलेक्ट की है इसके अंदर जहां जहां पे गैस मिलेगा वो क्या कर देगा, उसका काउंट शो कर दिया. सो आई गॉट द 3, इट्स करेक्ट बिकॉज गैस अपीयर्स 3 टाइम्स देयर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. ऑलराइट. ओके, तो आपको सिर्फ रेंज सिलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द क्राइटेरिया. ओके, ट्राई दिस वन. एक बार इसे ट्राई करके देखो. रेंज, क्राइटेरिया इज योर गैस. जहाँ जहाँ पे गैस होगा उसका काउंट देगा ये. यदि यहाँ पे सम इफ होता तो सम देता है, बट सम इफ तो थोड़ी सी पैरामीटर अलग हो गए. ओके, अब उसी के सामने थोड़ा सा ओके डन, या डन दिस वन. रेंज एंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यूज गैस. वो टेक्स्ट इसलिए वो डबल कोट यूज करने ही पड़ेगा. ओके, डन. ओके, अब थोड़ा सा अलग देखते हैं सीधे. ओके, सी आई एम यूजिंग द काउंटिंग. ओके, चेक इट. ओके, आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला काउंटिंग. तो अब फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज. सपोज मेरी ये न्यूमेरिकल रेंज है. ओके, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द न्यूमेरिकल रेंज नाउ. ओके, कॉमा, व्हाट इज योर क्राइटेरिया. तो इस न्यूमेरिकल रेंज के अंदर जिन जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 40 है उसका काउंट चाहिए. ओके, रेंज तो वही होगी, इसके अंदर जिनके मार्क्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 40, मतलब कंडीशन देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे क्या लिखना है, डबल कोट के अंदर कंडीशन देनी पड़ती है. रिमेंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू आपको जो लिखना है. सो आई एम यूजिंग हियर ग्रेटर देन दैट इज 45. ओके, यस. ओके, ठीक है, ग्रेटर देन 40, डबल कोट कंप्लीट, क्लोज पैरेंथेसिस. सिर्फ हाँ कंडीशन है थोड़ी सी, तो डबल कोट में लिखनी पड़ेगी ये. सो प्लेस द एंटर. सी आई गॉट जस्ट 2. यस, बिकॉज जस्ट यू हैव द 55 ऑन द 50, दो ही मार्क्स अबव 45. ओके, सीधा काउंट तो करना है मुझे, बट न्यूमेरिकल काउंट है. आप न्यूमेरिकल पे कुछ लॉजिक है. तो इन डबल कोट यू हैव राइट द ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, या जो भी लिखना. हाँ, आपको डायरेक्टली जहां जहां 40 है वो चाहिए तो सिर्फ 40, तो डायरेक्टली 40 लिख सकते थे ना. डायरेक्टली 40 सिलेक्ट कर सकते थे. ओके, डबल कोट की भी जरूरत नहीं पड़ी. जैसे कि हमने यहाँ पे गैस के लिए किया, जहाँ जहाँ पे गैस होगा वो मिल जाएगा, जहाँ जहाँ 40 होगा उसका काउंट मिल जाएगा. बट नाउ वी हैव टू गिव द कंडीशन, सो दैट्स व्हाई यूज द डबल कोट. ओके, ओके, नाउ सी देयर. ओके, उसके सामने एक थोड़ा सा अलग यूज करते हैं. ओके, डन. ओके, काउंट इफ. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज. तो ये मेरी रेंज यही है. ओके, रेंज यही है. तो अब मुझे किसका काउंट चाहिए,
गैप छोड़ के बाकी सबका काउंट चाहिए, गैप छोड़ के बाकी सबका काउंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, नॉट गैस करना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है, तो नॉट, ओके, सो दिस इज आवर क्राइटेरिया। ओके, यहाँ पे आपको नॉट के लिए दिस इज अ नॉट ऑपरेटर इन द एक्सेल, एंगल ब्रैकेट। ओके, चलिए उसके बाद आपको लिखना है गैस, नॉट गैस, क्लोज द पैरेंथेसिस एंड चेक। सो यस, आई गॉट द 5। चेक करो, गैस छोड़ के गैस का 3 काउंट है, टोटल 8 काउंट है, तो विल गेट द 5। ओके, रिमेंबर दिस इज द नॉट ऑपरेटर इन द एक्सेल, नॉट गैस। रेंज वही है आइटम्स की, नॉट गैस। So not gas के लिए greater than हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, एट द सेम टाइम। ओके, एंगल ब्रैकेट यू कैन से दैट, डबल कोट के अंदर लिखना है सब कुछ, क्राइटेरिया आपको जो होगा डबल कोट के अंदर ही होगा, नॉट गैस। वैसे नॉट ऑपरेटर है बट उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, नॉट रिवर्ट करता है, बट यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करना है, नॉट गैस। ठीक है, ठीक है, डन। मतलब गैप छोड़ के बाकी क्या कर देगा, सब कुछ शो कर देगा। ओके, आफ्टर दैट नाउ सी, ओके, थोड़ा सा, ओके, कई पीपल यूज कर सकते हैं। नाउ सी, आई एम यूजिंग द काउंट इफ अगेन, सेम फॉर्मूला काउंट इफ, तो रेंज वही है आइटम्स। ओके, तो मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, जिसका मतलब टेक्स्ट, जिसका फर्स्ट लेटर गैस है, जी है, उसका काउंट चाहिए। ओके, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, जी है, तो इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जी तो नहीं लिख सकते, वो तो सिर्फ जी, वो तो होना चाहिए, तो वी हैव टू यूज द वाइल्ड कैरेक्टर। Okay, while मतलब it's a regular expression, okay, you can say that, okay, meta characters, okay, तो आपको पाइथन में मिल जाएंगे, सीक्वल भी मिल जाएंगे, इन द सीक्वल वी हैव द लाइक पैरामीटर, लाइक होता है, तो सेम थिंग। ओके, तो मेरा पैटर्न क्या है देखो, सो पहले जी होगा, जी के बाद मैं स्टार लिखूंगा, स्टार मीन्स एनीथिंग, जी के बाद कुछ भी आ सकता है। okay, स्टार का मतलब होता है इट्स अ वाइल्ड कैरेक्टर एक्चुअली। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वाइल्ड कैरेक्टर्स हैं जो आपको पाइथन या हर एक लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगी। ओके, ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर दूंगा एंड क्लोज योर पैरेंथेसिस। इन द डबल कोट मैंने क्या लिखा, जी लिखा, उस पर स्टार लिखा, स्टार मतलब जी के बाद कुछ भी आ सकता है। ओके, देन प्रेजेंट सी आई गॉट द 6 एंड यू कैन काउंट, यस विल गेट द 6, वहां पे आपको 6 ही मिलेगी। ओके, दैट्स कॉल्ड अ वाइल्ड कैरेक्टर, यहाँ पे वाइल्ड कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी वाइल्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है। चेक दिस, पहले जी होगा, जी के बाद स्टार, स्टार मतलब एनीथिंग, स्टार मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं उसके बाद। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर्स। ओके, इन द डबल कोट जी स्टार, ये आपका क्या है, आपका पैटर्न है एक्चुअली, दिस इज योर पैटर्न बाय यूजिंग वाइल्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कैरेक्टर से आप अलग अलग पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो, वो सर्च करेगा कहाँ पे। ओके, स्टार का मतलब एनीथिंग, पहले जी होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा मैं पैटर्न अलग कर देता हूँ। ओके, बहुत सारे पैटर्न कर सकते हैं, सपोज मैंने लिख दिया कोलन क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, पहले सपोज इट्स अ थ्री, थ्री क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डबल स्टार, मतलब क्वेश्चन मतलब एनीथिंग, पहले 3 कैरेक्टर हो गए, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, यस यस। ओके, इसका मतलब क्या 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 मिलना चाहिए, नहीं, पहले 3 कैरेक्टर कंपलसरी, जी एल ए ग्लास, राइट, 3 कैरेक्टर हो गए, उसके बाद यस यस। ओके, प्रेस द एंटर, सी आई गॉट द 3 एंड यस फॉर द ग्लास, यस वी हैव द 3 काउंट। ओके, तो क्वेश्चन मार्क इज आल्सो देयर, क्वेश्चन मार्क भी होता है। ओके, पहले 3 कैरेक्टर हो गए कंपलसरी, उसके बाद यस यस हो गया, वी हैव रिटन 3 टाइम्स क्वेश्चन मार्क, इट्स कंपलसरी 3, ये तीनों के लास्ट में पहले यस दे सकते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन मार्क, आप कैसे भी यूज कर सकते हो उसे, जैसे आपको चाहिए, बट वो कंपलसरी उतने होने चाहिए, 3, 3 हो गए कैरेक्टर, उसके बाद यस यस होना चाहिए, या आपको जैसे आपको जो भी कोई भी सर्च करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क इज आल्सो इट्स अ वाइल्ड कैरेक्टर, ये भी एक वाइल्ड कैरेक्टर है। ओके, डन।
तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है, आप और वाइल्ड कैरेक्टर चेक कर सकते हो, इट्स सेम, हर एक लैंग्वेज में वाइल्ड कैरेक्टर सेम ही है। Okay, in the SQL also we'll get the wild characters. In the like we have the like parameter there. In the Python we have the regular expression. Okay, हर एक लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ओके, देन यू नो द कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट आपको पता है, ट्रेन ट्राई कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूले। ओके, कॉन्कैटिनेट आप ट्राई कर सकते हो। ओके, यू नो द हाउ टू क्रिएट द चार्ट्स। चार्ट, ओके, विल गेट ऑल द चार्ट्स इन द इंसर्ट। ओके, अलग अलग चार्ट्स है, तो सपोज आपको चार्ट इंसर्ट करना है, तो हाउ टू इंसर्ट द चार्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा एंड यू हैव टू इंसर्ट द चार्ट। सपोज मेरे दो कॉलम कौन से, देखो मेरा फर्स्ट कॉलम ये वाला है। ओके, ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम रन्स, इन दोनों के लिए चार्ट इंसर्ट करना है, पूरे टेबल के लिए, तो कर सकते हैं। ओके, सीधे फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस कॉलम। ओके, यूज द कंट्रोल टैब, देन यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर कॉलम, देन यू कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम, कौन सा भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट यूज द कंट्रोल बटन। ओके, इन तीनों के लिए मुझे क्या करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, तो यस यू कैन इंसर्ट द चार्ट, आपको जो चार्ट चाहिए वो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, या पूरे टेबल के लिए इंसर्ट करना है तो ठीक है, पूरा टेबल सिलेक्ट कर दो, उसका चार्ट इंसर्ट होगा। ओके, चेक। So you have to insert the one chart. Okay, that's the last assignment. So you have to select this one. Okay, Anil name versus wicket. Okay, आपको कौन सा चार्ट इंसर्ट करना है, पाई चार्ट इंसर्ट करना है, नेम ऑफ प्लेयर वर्सेस विकेट, नेम ऑफ प्लेयर वर्सेस विकेट, इसके लिए आपको पाई चार्ट इंसर्ट करना है। कौन से कॉलम, देखो दो कॉलम है, नेम ऑफ प्लेयर वर्सेस विकेट, ये दो कॉलम के लिए पाई चार्ट इंसर्ट करना है, पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपके नेम ऑफ प्लेयर बन जाएगा लेजेंड और आपका पाई चार्ट इंसर्ट होगा। नेम ऑफ प्लेयर वर्सेस विकेट, you have to select the two columns at the same time by using control tab। कंट्रोल प्रेस रख के आपको नेम एंड विकेट्स दो कॉलम सिलेक्ट करने हैं, एंड उसके लिए आपको पाई चार्ट इंसर्ट करना है। नहीं हुआ, ओके, सीधे हाउ। ओके, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस कॉलम। ओके, सिर्फ नाम करो, प्रेस द कंट्रोल फ्रॉम कीबोर्ड एंड देन सिलेक्ट द विकेट। ओके, इन दोनों के लिए मुझे क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट द पाई चार्ट। सो इन द इंसर्ट, यस वी हैव द पाई चार्ट हियर, तो वी कैन सिलेक्ट द 3D पाई चार्ट, इट्स अ गुड वन। ओके, इट्स अ 3D पाई चार्ट, बट मुझे पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज चाहिए, मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पाई चार्ट मतलब परसेंटेज। ओके, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज तो शो नहीं होगी, बट ठीक है, बहुत सारे आपको चार्ट स्टाइल मिलेगी ऊपर। ओके, तो इसका यू कैन सिलेक्ट द परसेंटेज वाला, एक परसेंटेज वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज देखो, या आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द फॉर द नेम। ओके, नेम का सिलेक्ट कर लो। ओके, सिलेक्ट द नेम, जहाँ पे नेम मिले वैसे वो चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द नेम। ओके, हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा लेबल्स के अंदर डेटा कॉल आउट, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, तो अब नेम के साथ परसेंटेज भी शो होगा, नेम के साथ परसेंटेज भी शो होगा। चेक, मुझे पाई चार्ट चाहिए और उसके वो लेबल भी चाहिए, नेम चाहिए और परसेंटेज चाहिए। Okay, just give me attendance, tell me one name one by one। Yes, Rupesh. Bhupesh, surname, Ye. okay, next Shivani, Shivani surname,
Okay. After that, next one, Rahul Hire. Okay, Rahul Hire. Next one, Yuvraj Singh. Surname यही है. Okay. After that, Mayuri Patil. Okay. After that, next one, yes, Sami. AIDY. After that, Sirjit. ठीक है, आपका नाम कॉपी कर लेता हूँ वैसे. After that, Tanmay. Surname Wag Dare. Next, नहीं नहीं, नाम 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 अंजलि. ओके, सरनेम कोटगिरे. ओके. ओके. ओके, आई थिंक डन. यू गॉट द पाई चार्ट. ओके, ठीक है. ठीक है, सो ये भी स्टॉप कर लेते हैं. ओके, ठीक है. वो परसेंटेज कैसे ऐड किया था? परसेंटेज के लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, डेटा लेवल्स के अंदर एक डेट कॉल आउट है, डेटा कॉल आउट. डेटा कॉल यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो परसेंटेज शो होगा. ओके, हाँ, ठीक है. वैसे बहुत सारी चीजें, वी हैव द पावर क्वेरी, पावर पिवट, वीबीए, मैक्रोस, बहुत सारी कंसेप्ट होती है. ओके, बट दिस आर सम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट? ओके, ठीक है. सो यस, विल स्टॉप.